Private Tuitions. We directors, me, Avinash sir, Shrenik sir, we all are there. This is the opportunity that you get a chance to meet every teacher, all the staff, all the team members of Physics Private Tuitions. Please come back. Nimish good hai? So, point here is, yes, definitely throughout this next 2 years, we are going to meet. There will be a PTM. But this is for the first time before, the course is already started, but it's the initial stage, only 2 months passed, 3 Sunday tests done. We always take this seminar or this guidance lecture, always after the 1 or 2 Sunday tests are done. So you come to know what all mistakes you are doing, how to study, when to study, where to study, what to study, self-study, how to manage it. There are 3 areas. Number 1, during lecture, what should be your mindset? When you go home after the class, during self-study, what should be your mindset? How should it be done? That's the most crucial stage. That's the most important, I can say, time where student needs to be with them. And it's always you versus you, all right? And the third stage is Sunday test. Throughout the week when you work, and Sunday in that 1 hour, in that MVM, what is your mindset? With what positive mindset you are attempting the paper? Because it may happen that you have worked extremely hard for the complete 1 week, but in that 1 hour you are not able to manage the time. Half of the students in this 3 Sunday test, not half, more than that, 60-70% students must have complained that I'm able to attempt this all questions and paper at home, but I'm not able to manage time there. Because that's what we wanted to, address is all points today. The approach is different. In this next, 2 months, past 2 months, 1 chapter is already done. Shrenik sir has already completed measurements. And 1 chapter is just about to get over. What challenges these people are facing from their side and what challenges we are facing from our side. Even we want to discuss that points. We are struggling in basic mathematics with these kids. When we are explaining in some of the very basic fundamental mathematics, I will just say algebra, we are struggling. Geometry, these people, they never used to like geometry in school days. But I need that for the initial chapter called vectors, and we need to apply that concepts. So these people are struggling, and even with our struggle is also there. And every year it is, year by year, that struggle is increasing from what we are facing. So how can this all problems, small problems can be addressed? Yes, of course, the point is, all the scenario which is going on, the CBT is going to be conducted for this guys. So we will definitely be conducting that. But then main point is whether it is online, offline, how is this paper needs to be attempted? How is the study pattern? The first thing is the school ka approach, no matter now which board you all belong to. I hope students must have understood during the lecture in all 4 batches. Now each one is at the equal level. जो CBSE वालों का स्ट्रगल है वही सेम स्ट्रगल SSC बोर्ड का भी है एंड द सेम स्ट्रगल इज फॉर द ICSE स्टूडेंट्स आल्सो. तो पॉइंट हियर इज नाउ बोर्ड्स इज नॉट important. What is more important is NEET 2028. How to crack this exam? What should be your professional approach for that? So for that, everything we are going to, we are going to take your all questions. I'm damn sure after this meeting, all your questions will be answered. Apart from that, there will be question answer session also. Apart from this, whatever things you have and you want to communicate, me, Avinash sir, Shrenik sir, of course, Deepak sir, others sir, we are always available. We are all available for the doubts and for your all other queries. Deepak sir is 24/7 available. So point is, now the students are settled in Konark Darshan. Which floor, what batch he has to attend, where to sit for physics, he has to attend for the chemistry class, where he has to go, where is the office, who is staff, everyone they know, everything they know. Now we have started with from tomorrow onwards, we are starting with the 4th lecture. Student must have informed you. I clearly mentioned that point in the yesterday's lecture, that this is not extra lecture. This is the 4th lecture we are starting in physics, because 3 lectures are never enough in physics to complete the syllabus. And guys, very soon, maybe after December, we'll be introducing the 5th lecture as well for physics. This is without disturbing Monday. Yes, of course, parents are
थोड़ा सा सरप्राइज हुआ है, इट्स अ बायो डे, बट दिस इज 4th lecture which we have introduced. The timings are, again, there are 4 batches. This will be, I mean, without disturbing either bio or maths ka class, they can attend any of the 4th batch. So it's not like that the TTS mein which batch they are attending, they are supposed to attend the same batch. The batch can be different, but the teaching and the everything chapter will go on. So now onwards they will have 4 lectures in a week, Monday, Tuesday and Thursday, Saturday. So Monday, Tuesday one teacher will continue, then Thursday, Saturday other, I mean, it's going to be my lecture. So these chapters will go on. Students, this is the crucial time. Now we have to gear up. अब तक second gear में चल रहे थे. Now we need to bit accelerate. The next topic is kinematics only. We'll talk about velocity acceleration. We need to now accelerate a bit. For that, there should be a very constructive approach, and for that we need to meet. I mean, there is the one bridge is required to be constructed between parents, students and us. We all three are at the vertices of a triangle. If any area is not proper, any vertex, any base here is not strong, then you will definitely be facing a problem. So it's very, I mean, to keep the transparency between the parents and students and teachers and parents, we need to meet once, and that's why we are all here today. I really thanks everyone, all parents especially, for giving your very precious Sunday afternoon. I mean, and I hope everyone, Deepak sir is always there 24/7 with us. So as you know, any students also now know first floor pe Prashant sir is always sitting there. He is always be looking after the notes and attendance, and any problem, any video lecture which is, I mean, uploaded on the app, and for PPT ka app, if you are finding any problem, you can always contact them. So now, exactly what materials we are going to provide, which books to refer, how to approach us or how to contact us, and throughout the next 2 years, how we are going to study. There are many questions in your mind, in students as well as parents. So I'm damn sure all your questions will be answered clearly after this session, and otherwise definitely a question answer session hoga. So now I request Shrenik sir to take this ahead, and he will explain you all the materials which we are going to give and how exactly that needs to be used. What problems we have faced, that definitely we will discuss in this 2 months, and we need to work out on this. So Shrenik sir, please. Thank you, Vimal sir. So first of all, good afternoon everyone. Good afternoon parents, good afternoon students. Hemal sir have covered majority of the questions which you might be having in your mind, correct? One of the important question parents have in their mind is classes के तरफ से मिल क्या रहा है? What exactly the materials provided by the classes? So parents, this particular question is I'm answering right now for all of you. So please pay attention to each and every important point. Okay, बच्चा लोग please verify करना. This was the foundation notes which you received. Am I correct? Great. तो parents, ये हमारे तरफ से पहला notes था जो हमने दिया था. This is foundation notes. Okay, we call it as a bridge course. जो बच्चे 10th standard में हमारे यहाँ पे different boards से आते हैं, CBSE, SSC, ICSE, IGCSE. We don't want to have any inferior or superior feeling for any of the child. We want them all at one level. So this is why we took the foundation course. तो फाउंडेशन कोर्स हमने स्टार्ट किया था एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर, वेरी स्टार्ट इटसेल्फ, जहां पे इन अ मंथ वी कंप्लीटेड दिस एंटायर कोर्स वेयर वी टॉट बेसिक्स ऑफ द चैप्टर. एम आई करेक्ट बच्चा लोग? प्लीज अग्री और नॉट, गिव मी अ थम्स अप. ओके गुड. सो नेक्स्ट थिंग जो हमने दिया है हमारे एंड से, दिस इज द थ्योरी नोट्स. पेरेंट्स, ये थ्योरी नोट्स हैं, ऐसे इनको पूरे 2 साल में 4 से 5 बुक्स मिलेंगे. These are going to be 4 to 5 different books. Each particular book covers 6 to 7 chapters in detail, including government textbook as well as NCERT के important points. Okay, but this particular book involves everything in terms of theory, very clearly theory, which will help them to write subjective answers, whether it be college exam or future may it is going to be HSC board exam. So for that very purpose we are providing this book. अब इसमें मेरे एक छोटी सी कंप्लेन मैं अटैच कर देता हूँ बच्चे लोगों से. पेरेंट्स प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा. बच्चे लोग इसे पढ़ ही नहीं रहे हैं.
They think that this book is just an extra printed material given to us, which is not required. But parents, please understand, हम अपना hard earned money ऐसे वेस्ट नहीं करेंगे. अगर हम printed दे रहे हैं, मतलब इसका कुछ purpose है. There are numericals in this. There are solved and unsolved, both the numericals in this. So it's a request to all the parents, नहीं, for every chapter. Okay? Then the next thing comes is this, my favorite, personal favorite, pink MCQ notes. Okay, हमने इन बच्चों को फिलहाल एक ही नोट दिया है. This note contains only 2 chapters. So roughly they are going to get around 12 to 15 such books in the 2-year course. Okay, हर एक chapter, हर एक book में there will be 2 or 3 chapter, not more than 3. And this contains what? Synopsis and MCQ, multiple choice questions. बच्चा लोग please verify. Yes or no? Good. So yes, ये MCQ notes में we covered all the different types of MCQs, including different levels. When I say different levels, what do I mean by that? Something like practice sheet हमने इसमें introduce किया हुआ है, which is level 1 MCQ. Very simple. If you have done the proper theory of the chapter, you can attempt those MCQs. We give them as homework for practice. Then there is a part called as classwork as well as homework. Now classwork, all the MCQs we do in the class. बच्चा लोग please, yes or no? Great. Measurement में classwork में 20 MCQs हैं जो मैंने last lecturing के खत्म होने पर complete किया है. Correct? Similarly, Hemal sir must have been taking vectors का classwork MCQs. Correct? Once the classwork is done for one topic, we give similar questions for homework. Am I correct बच्चा लोग? Good. तो होमवर्क भी इसी में है. And parents, I need to point this out. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एटलीस्ट फर्स्ट कुछ रोज तो क्लियरली देख पाएंगे दैट देयर आर क्वेश्चंस ऑन वन साइड एंड देयर इज अ ब्लैंक स्पेस ऑन द अदर साइड. ओके, यानी बच्चे लोगों को अलग से नोटबुक लेके सोल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है. दे आर सपोज टू राइट द सोल्यूशन ओवर हियर इटसेल्फ. इफ दे आर राइटिंग द सोल्यूशन हियर इटसेल्फ, इन फ्यूचर दे कैन रेफर दिस सोल्यूशन फॉर देयर ओन रिविजन. एंड दैट इज द रीजन, अगर कुछ पेरेंट्स को शायद पता होगा, यस्टरडे सैटरडे वी मेड सर्टेन स्टूडेंट्स वेट because we checked their MCQ notes and they were not complete. So we are going to do this regularly. Every Wednesday or Saturday or Thursday, we will check their notes, and if we find that the notes are not completed, we will make them wait and we will make sure that these notes are completed. So parents, be ready for this. Okay? Please. Vansh, I request to shift one minute. Thank you. I request if there is a 1 minute in between vacant, can you please shift? Ayushman. Thank you. Yeah, that would be better. So we can have one seat at the corner. Ma'am, can you shift? Next important book, the reference book we have given. ये बच्चे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है because weight में बहुत ज़्यादा है. But yes, this is Marvel, a reference book. We have given 2 books of this. Am I correct, बच्चा लोग? Please confirm करो. Yes. So it's a volume 1 and volume 2. There are 2 volumes in it. ये पूरे 2 साल के लिए 2 ही book है. There are no more books for this. So this cover your entire portion. Okay, अब ये क्या करना है सर? इसका what we are supposed to do? ये बहुत heavy है carry करने के लिए. I understand this. So what you can do is, you may not carry this book every day because इसका office copy office में रखे हैं. हमने 2 copies रखे हैं office में. And since every student uses mobile phone, we are completely okay if they want to carry some pics in their mobile phone to solve it at the class or ask doubts. अब ये solve कब करना है? If you children, अगर आप लोग agree करोगे नहीं करोगे प्लीज मुझे कंफर्म करो. जैसे जैसे चैप्टर आगे आगे from Marvel. Am I correct? Yes. How many of you have solved it? इसीलिए पेरेंट्स को बच्चों के बाजू में बिठाया था. पेरेंट्स, आप अपने बाजू में देख लीजिए आपके बच्चे हाथ ऊपर कर रहे हैं या नहीं. So that was one important thing, that once we start doing the chapter, it is not only theory. We can't do theory alone. In physics,
In physics, we have to deal with numericals, we have to deal with MCQs, we have to deal with theory, we have to deal with logic. So it's very important for every child that they should solve all the things simultaneously as per the instructions. और हमने कभी भी एक साथ 200 MCQ नहीं दिए हैं. What we do is roughly around 30 MCQs per day. 30 MCQ solve करने के लिए ideal time is 30 minutes, but if the student is slow, he or she might take 1 hour. क्या हम physics को everyday 1 hour नहीं दे सकते हैं? We need to, right? For the extra solving. So for that very reason, we give the homework in breaks, in parts. Now, so I hope materially आप लोगों को क्लियर है पेरेंट्स. हमने फाउंडेशन नोट्स दिए हैं, हमने थियोरी नोट्स दिए हैं, एमसीक्यू नोट्स दे रहे हैं और मार्वल दे रहे हैं. These are the 4 बेसिक मटेरियल जो बच्चे को, हर बच्चे को कंपलसरी सॉल्व करना है. There is no excuse to this. इसके ऊपर क्या करना है? We give them advice personally based on their ability. Okay? So next thing comes is, sir solve तो कर लेंगे, doubts का क्या? How do we solve the doubts? So my first question to you is, do you know how to ask a doubt? बच्चा लोग बताओ. Do you know how to ask a doubt? Anyone? Yes. Yesterday there were some students, I won't name them, but doubt कैसे आता है मेरे पास? Sir, internal booklet, question number 26, solve करो. What do you think? Am I ChatGPT or what? If you're looking for solution, I'm not the correct person. Then go to ChatGPT only. You should come to the professor with a doubt. Sir, I solved this. I did not understand this part. I was not able to do the calculation. Sir, I was stuck in this particular step. That is how a doubt has to be asked. You cannot just come with the question blindly, doing nothing from your side and just giving the question back to the professor and asking for doubts. Yesterday पेरेंट्स को पता होगा, कल शाम को 3 घंटे का सेशन मैंने लिया है, 3 घंटे से भी ज़्यादा का एक्चुअली. And some students personally messaged me saying, sir, we are very blessed that you gave us 3.5 hours for our doubts. I said I had no option. संडे टेस्ट है, संडे टेस्ट में मार्क्स नहीं आएंगे तो पेरेंट्स मेरा गला पकड़ेंगे. तो डाउट्स लेने के लिए हम रेडी है. वी आर ऑलवेज देयर, वी आर ऑलवेज अवेलेबल. बट डोंट यू थिंक स्टूडेंट्स ऑल्सो हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर देयर ओन स्टडी? You cannot just blindly ask anything. You have to study and come. And that is the reason, parents, from our side, whenever the doubts been asked, we also ask them back a question. क्या इस पर्टिकुलर चैप्टर का फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं? क्या इस पर्टिकुलर चैप्टर का कॉन्सेप्ट तुमको पता है या नहीं? क्या बेसिक मैथ्स तुमको आता है कि नहीं? Because these are some requirements and we can't teach them 5th standard, 6th standard, 7th standard maths. It's impossible for us. But we are still trying for it. Yesterday, again I won't name student, but yes, one student came to me with a doubt. Sir, half plus b equal to 0 आ गया मुझे. b क्या है? अब इसका मैं क्या आंसर दूं? मैंने उसे बताया, बेटा हाफ प्लस बी इज इक्वल टू 0. नाउ दिस इज पॉजिटिव हाफ, टेक इट ऑन द अदर साइड, मेक इट नेगेटिव, योर बी का वैल्यू बिकम्स माइनस हाफ. सच अ क्यूट स्माइल ही गिव मी. बिलीव में मुझे मजा आ गया ये पढ़ा के. बट प्रॉब्लम इज, if I start doing this level of teaching, I will not be able to give time to all the students. And frankly speaking, the student needs help in such a basic level, is not able to understand the level of maths and physics involved in 11th and 12th. So what we need is basic mathematics का एक proper revision बच्चों को घर पे करना जरूरी है. What I mean by basic maths? Addition, subtraction, multiplication, division, fractional addition, subtraction, laws of indices. ये basic formula है जो 5th, 6th, 7th standard में सिखाया गया है. ये बच्चों को आना जरूरी है. And if they are slow in it, it's completely fine. We can show them the tricks how to go for fast. But we can teach them this at the basic level. So parents, it's a request from my side. घर पे ना as a parent आप एक normal test ले लो. टेबल पूछो. 12 का टेबल बोल, 22 का टेबल बोल, 13 का टेबल बोल. ये टेबल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. पेरेंट्स, आई एम श्योर आप सभी ने बचपन में 25 तक का टेबल रट्टा मारा होगा.
Am I correct? Yes or no? It is needed, it is imperative. You can't challenge that. NEET जैसी एग्जाम में if you want to save time and solve MCQ fast, you have to be quick in maths. And to be quick in maths, you have to have tables, addition, subtraction, fraction, all those things, quick calculation in your mind. I'm not talking abacus. I'm talking about oral basic calculations. So this is something which is required. From my side, I'm pointing this out. Okay. Apart from this, there are multiple things जो हमें cover करनी है, for which I'm going to ask Avinash sir to come. But before that, sir, sorry, I missed one point. Doubts के लिए हमारी पूरी टीम available है. अविनाश सर से स्टार्ट करते हुए, हेमल सर से जाते हुए, मेरे से पास होते हुए, हमारे नितिन सर है, हमारे आदर्श सर है. They are all available for doubts. So बच्चा लोग, ये तुम्हारे माइंड में कभी नहीं आना चाहिए हेमल सर ने वेक्टर सिखाया, हम हेमल सर से ही वेक्टर के डाउट पूछेंगे. हम सबको भी आता है वेक्टर. यू कैन आस्क अस. वैसे ही मेजरमेंट मैंने सिखाया तो मेरे से ही मेजरमेंट के डाउट पूछेंगे. नो, सबको आता है मेजरमेंट. हमारी पूरी टीम को पूरा फिजिक्स आता है. सो वॉट एवर चैप्टर हैज बीन टॉट बाय विच एवर प्रोफेसर, यू कैन आस्क योर डाउट टू एनी अवेलेबल प्रोफेसर इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम. ओके, सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज मेक श्योर जो तुम्हें ये फैसिलिटी मिल रही है उसका आप बहुत अच्छे से यूज करो. ठीक है, थैंक यू एवरीवन. आई विल रिक्वेस्ट अविनाश सर टू कम प्लीज. गुड मॉर्निंग पेरेंट्स. गुड मॉर्निंग. हाँ, गुड मॉर्निंग ही बोल रहे हैं क्योंकि मैं आप लोगों को अभी जगाने वाला हूँ. मुझे पता है आप लोग रहा है कि मॉर्निंग के जगह पे आफ्टरनून जगह पे मॉर्निंग क्यों बोल रहा है. ओके, सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गिविंग योर टाइम. राइट, मुझे पता है इस एक दो लोगों को बाहर भी जाना है तो मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी मैं खत्म करूं. सर तुमसे ट्रेन छूटना रहा है, घाबरू का. ओके, सो आई विल टेक कुछ पेरेंट्स वाड़ा से भी है, यहाँ से वाड़ा. येस और नो? ठीक है, तो मराठी हिंदी इंग्लिश सगळं चालेल का? मिक्स बोलतो, मुंबईची लँग्वेज. मुंबई में भेलपुरी चलता है, ठीक है, तो मैं उस लैंग्वेज में बात करूंगा. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. येस और नो? Okay, so I am Professor Avinash. So I just taught them one small foundation chapter, right? And after that, Hemal sir और Shainik sir पढ़ा रहे हैं आप लोगों को. So definitely इसके बाद के टॉपिक में मैं आऊँगा. And today's session is what? Now Hemal sir explain about our system. Shainik sir explain about क्या पढ़ना चाहिए. अब मैं बताऊँगा कि कैसे पढ़ना चाहिए. आई थिंक सब लोग बात करते ये पढ़ो वो पढ़ो इतना पढ़ो, राइट है. कोई ये बात नहीं करता कि कैसे पढ़ना चाहिए. सर नो. And today I'll give the full roadmap of 2 years, right? If you'll follow this properly, I'll tell you, you'll get that result, because I'm not saying just in, कि बात करने के लिए बात कर रहा हूँ. It's already tried and tested. So now 1 hour I need your right, please. All of you listen properly. इसलिए हमने आपको पहले से फ्रूटी और पानी दे दिया है कि आपको यहाँ से जाना नहीं है, ठीक है? Okay, and last year after this seminar, someone asked me, sir, why you not taken this seminar before that, admission process, immediately after admission process, and when you started the class. मैंने बताया इसलिए नहीं लिया कि तब तक आपको लग रहा था कि आप ग्रेट हो. अभी 2-3 टेस्ट के बाद पता चल रहा है कि हम कहाँ पर हैं. Yes or no? How the test is going on? फिजिक्स का टेस्ट मुझे पता है, मैं बाहर सुन रहा था, सर पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, पेपर में ये प्रॉब्लम था, पेपर में वो प्रॉब्लम था. यस और नो? डोंट वरी, 2 महीने से पूरी इंडिया वही बोल रही है. और फिजिक्स को लेके तो बहुत गालियाँ पड़ रही हैं. मतलब रात रात को मुझे नींद ऐसे में उठ जाता हूँ कि कोई तो मुझे गाली दे रहा होगा. आप समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिजिक्स ऐसे ही होने वाला है और फिजिक्स ऐसे ही रहेगा. एंड फाइनली फिजिक्स का अप्रोच शुड बी व्हाट डिफरेंट, राइट? डोंट कंपेयर फिजिक्स सब्जेक्ट विद व्हाट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, स्पेशली विद बायोलॉजी, प्लीज. ओके, एज ए डॉक्टर आई नो यू वांट टू स्टडी ओनली बायो, आई नो वेरी वेल, राइट? अगर आपका मौका चले तो अगर कोई इसमें से पीएम बन जाएगा तो पहले बायो फिजिक्स सब्जेक्ट को उड़ा देगा. मतलब मेरा तो घर ही नहीं चल सकता, ऐसा मुझे लग रहा है, राइट है? बीच में ऐसा रूमर भी आ गया था ये भी फिजिक्स निकलने वाला है. ओनली केमिस्ट्री एंड बायो विल डिसाइड मेडिकल एडमिशन प्रोसेस. दैट डे अमंग सर कॉल मी इन द इवनिंग, अविनाश अभी तेरा क्या होगा? मैंने बोला सर ये सब्जेक्ट हटा ही नहीं सकते क्योंकि यही सब्जेक्ट तो फिल्टर करता है. यस और नो? याद रखो, आई टेल यू फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, राइट? इफ यू आर डूइंग केमिस्ट्री बायोलॉजी प्रॉपरली और फिजिक्स को आपने निग्लेक्ट किया, आपका एडमिशन नहीं होगा. ओके, यस, व्हाट हैपेंड? व्हाई यू आर गोइंग? देखा, फिजिक्स स्टार्ट होते ही इफेक्ट आपको समझ में आ गया. हाँ, ऐसा होता है. तो आई टेक 1 hour, राइट? हंसते रहेंगे, थोड़ा फिजिक्स में हंसना भी चाहिए. आज ओके, अभी कल का आज फिजिक्स का पेपर था. यस और नो? आई थिंक लास्ट संडे यू हैड बायो पेपर. टुडे बायो आल्सो, बायो भी था आज.
तो आप जब भी बायो फिजिक्स दोनों साथ में होता है तो आपके घर में कभी खुशी कभी गम का माहौल होता है। कभी आपको लग रहा है कि बच्चा क्या पढ़ रहा है और कभी लग रहा है ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो जब कुछ भी नहीं कर रहा है तो समझ जाने का कि ये क्या पढ़ रहा है, फिजिक्स, और बहुत पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है, बायो। यस और नो? और जिस संडे को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होगा उस घर में, तो उस दिन तो एकदम प्यारा माहौल होगा। आपको लग रहा है बस ये डॉक्टर बनने वाला है। और इफ आई कंडक्ट ओनली फिजिक्स टेस्ट ना, तो समझ जाने का कि है हालत खराब। मेरी डॉटर भी, शी वाज इन 12th राइट, और माय सन ही इज कंप्लीटेड हिज इंजीनियरिंग, सो आई नो एज अ पेरेंट आल्सो राइट व्हाट हैपेंस राइट। घर में फिजिक्स का टीचर होके भी मुझे भी टेंशन आ रहा था क्या चल रहा है। तो जस्ट विल टॉक अबाउट राइट फ्यू थिंग्स, यस और नो। टुडे यू गॉट वन फोल्डर, मिला है सबको, ठीक है? तो ये मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, चलो वन बाय वन लोग बात करते हैं। व्हाट्स आवर मिशन एंड विजन, राइट? डेफिनेटली कैन यू टेक दिस डेट, क्या है ये, किसी को आइडिया? 2028 ना। नॉर्मली रिजल्ट कभी आता है 14 जून को रिजल्ट रहता है। इस बार थोड़ा डिले हुआ बिकॉज ऑफ री नीट, यस और नो? तो दिस इज द डेट, याद रखो आप लोग, ये डेट डिसाइड करेगा कि वेदर विल गेट एडमिशन इन मेडिसिन और नॉट। ओके, एंड यू नो कोइंसिडेंटली दिस इज माय डॉटर्स बर्थडे आल्सो, राइट? और जब उसका बर्थडे आया तो उस दिन मेरा रिजल्ट भी आया था नीट का, आई नो 2008। तो मैं दो टेंशन में था। हाँ, सैनिक्स का रिजल्ट था, सॉरी, ही वाज माय स्टूडेंट, राइट? और 2008 में सैनिक का रिजल्ट था, उसकी वाइफ का भी रिजल्ट था। शी इज डॉक्टर, ही इज इंजीनियर। तब मुझे नहीं पता था ये सब भी हो रहा है। डोंट वरी, ऐसा हमारे क्लास में कुछ होता नहीं, आप टेंशन मत लेना, वो सब बाद में हुआ है। ये तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे अच्छा लग रहा है, अविनाश सर क्या बातें कर रहे हैं। तो दिस डेट इज इंपॉर्टेंट, यस और नो? हम मैं रिवर्स में जाऊंगा, राइट? एंड डेफिनेटली व्हाट्स योर एम फॉर दिस मेडिकल एडमिशन, राइट? इज क्लियर? सबको है विजिबल? आवाज भी सुनाई दे रही है? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। नाउ व्हाट इज द नीट स्कोर रिक्वायर्ड, टेल मी, with the new pattern and everything? I think if your score is what 600, इस साल तो थोड़ा गड़बड़ भी लग रहा है, बहुत से लोग रहा है 600 पे नहीं भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। If your score is 600, you'll get government medical college, according to me, right? Is this clear? I'm not talking about KEM right now. 600 पे government medical college होगा। अब जैसे ही मैं बोलता हूँ 600 पे government medical college, the students start thinking 360 in biology, 118 watt chemistry, जो अच्छे बच्चे हैं। कितना हो गया जरा जोड़ो सब लोग, 360 प्लस 180, बोल 360 प्लस 180, दो को देख रहा है, हाँ 720 हो गया डायरेक्टली। 360 प्लस 180 फास्ट। Sir, this is I was talking about mathematics. 360 प्लस 180, स्टूडेंट्स टेल मी 360 प्लस 180, हाँ 540। तो उन्होंने सीधा सब्ट्रैक्ट कर लिया, 600 माइनस 540। अच्छा, फिजिक्स में 60 लेके आने का है। इज इट पॉसिबल टू गेट 360 एवरीवन, टेल मी? इस बार का सबसे इजी बायो का पेपर था, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे जो बायो के कलीग हैं उनके पास 5-6 लोगों को 360 में से 360 है, राइट? उसमें से ईरा भी एक है, यस और नो? ओके, तो एंड केमिस्ट्री में 180 लाना इतना इजी नहीं है। एंड इफ द स्टूडेंट्स इज एबल टू यू नो डू दिस राइट 360 और 180, तो उसको फिजिक्स में भी स्कोर आना चाहिए, राइट है? तो मेरे ख्याल से योर स्कोर शुड बी व्हाट बैलेंस, अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज द बैलेंस स्कोर? ओके, ये भी हो सकता है मेडिकल, राइट? जस्ट आई एम टेकिंग सम रैंडम नंबर, राइट, नॉट वन नंबर। सो सपोज योर स्कोर इज 575 आउट ऑफ 720, स्टिल गेट एडमिशन इन व्हाट मेडिकल, राइट? तो वो बैलेंस स्कोर 125 इन फिजिक्स, 130 केमिस्ट्री, 320 इन बायोलॉजी। Are you getting this? अब प्रॉब्लम क्या पता है? द मोमेंट आई से दीज थिंग्स, राइट, 575 आउट ऑफ 720, पीछे से कुछ लोगों को लगता है ये कैसे हो सकता है? इन 10th आई गॉट 98%। फर्स्ट ऑफ ऑल 10th घर पे जाके 10th का मार्कशीट है ना किधर छुपा दो, नहीं समझा? ओके, पेरेंट्स, आई थिंक आई जस्ट कंप्लीट माई 50 years, राइट? आई थिंक यू आर माई एज, राइट? यस और नो? सब पेरेंट्स यहाँ पे होंगे मेरे साथ वाले, ये बराबर है। हमारे जमाने में 98 लाना इजी था, किसी को मिला ही नहीं है। आई गॉट 91%, आई वॉज इन मेरिट, राइट, स्कूल टॉपर, यस और नो? आजकल 90 लाना बहुत इजी है, सॉरी स्टूडेंट्स, ये फैक्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो 10th के मार्कशीट को दिमाग से निकालो, और रखना भी है ना तो सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम दैट। If your total is what 98%, subtract 20. What does that tell me? 78. Not total. चलो 20 मत करो, 15 तो कर ही दो. This is the real score, right? Nowadays, you know, 100% भी आता है, मैंने सुना. कैसे मिलता है मुझे नहीं पता. And understand, NEET exam, JEE exam, CET exam, all these exams are low scoring exams, right, nowadays.
अप टू 2024 बहुत कुछ आ रहा था, अभी 25 26 में तो आपने देखा क्या क्या हो गया। आपको लगता है नेक्स्ट ईयर पेपर इजी आएगा कि डिफिकल्ट? यस यस। तो कम पढ़ना चाहिए थी ज्यादा, और आप लोग क्या कर रहे हो? पेपर विल बी डिफिकल्ट राइट ना? लॉजिकल है कि नहीं? अच्छा, फिजिक्स इज इजी और केमिस्ट्री और बायो रैंकिंग कर दे। पीसीबी सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट, मेरा रिकॉर्डिंग अबू सर को भेज दो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद में क्या आएगा? थर्ड। अच्छा, ये तो आपने बता दिया, सबसे डिफिकल्ट इज व्हाट? फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, देन बायो राइट ना? बट सबसे कम हम क्या पढ़ते हैं पता है? फिजिक्स। और सबसे ज्यादा क्या पढ़ते हैं हम लोग? बायोलॉजी। कैसे मार्क्स मिलेगा मुझे नहीं पता। I think students request to all of you, that's why we took this meeting like this right ना, 1-to-1 मीटिंग भी लेंगे। एक बार सबको बताना जरूरी है कि क्या चल रहा है, स्पेशली पेरेंट्स को भी बताना जरूरी है। ओके, सो दिस अ बैलेंस स्कोर, यस और नो? अभी किसी का ड्रीम ये कौन सा कॉलेज है? एनीवन नोज दिस? हाँ, अभी आपका ड्रीम ही केईएम है। वैसे सबको केईएम में जाना रहता है। पहले दिन ही मैंने पूछा था ना किसको केईएम में जाना है, बराबर है? व्हेन आई स्टार्टेड माय फाउंडेशन, यस और नो स्टूडेंट्स? सबने क्या बोला था? केईएम, यस और नो? हर साल में पूछता हूं, और हर 6 महीने के बाद फिर से पूछता हूं अभी किधर जाना है। 6 महीने के बाद बच्चा बोलता है सर बीडीएस भी बहुत अच्छा है। और 1 साल के बाद कुछ बच्चे मुझे बताए सर फिजियोथेरेपी में बहुत स्कोप है आजकल। और 1.5 साल के बाद बोलते सर बीएमएस, इंडिया में वापस आयुर्वेदिक आ रहे हैं। मैं समझ जाता हूं प्रॉब्लम किधर है। माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डोंट चेंज योर डेस्टिनेशन, चेंज योर पाथ। यस और नो? डोंट गो विद द स्कोर राइट। अगर आपको लग रहा है कि केईएम में जाना है तो जाना है। और पेरेंट्स फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, केईएम आप अपने बच्चे को घुमा के लेके आओ। मैं ट्राई कर रहा हूं अरेंज करने के लिए कि सबको साथ में लेके जाऊं। मेरा ट्राई चल रहा है राइट। मे बी आई टेक ऑल स्टूडेंट्स टुगेदर राइट इन केईएम। आई एम टेकिंग परमिशन एंड यू टेक योर फोटोग्राफ एंड एवरीथिंग राइट इन केईएम। पता तो चलना चाहिए कहां पे जाना है। इनको पता है कहां पे जाना है? खाऊ गली मुलुंड का, जहां पे खाने को मिलता है, उसको दिमाग से निकालो। केईएम दिमाग में चलना चाहिए, यस और नो? तो इफ यू वांट टू गो इन केईएम, आई थिंक दिस इज द मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड राइट? एवरेज मैंने लिया है, एवरी ईयर कीप्स ऑन चेंजिंग, यस और नो? बट स्टिल दिस इज नॉट आल्सो 720 राइट? दिस इज व्हाट 620 630 इन केईएम। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू योर गोल, अकॉर्डिंग टू योर टारगेट, योर योर गोल, द टारगेट विल चेंज राइट? आगे चलते थोड़ा और समझते। हाँ, नाउ यू ओपन दैट फोल्डर राइट। अभी मैं थोड़ा प्रैक्टिकल काम करेंगे, यस और नो? दिस आई एम डूइंग फ्रॉम लास्ट 3-4 years एंड आई एम गेटिंग ट्रेमेंडस रिजल्ट राइट? ओके, मुझे भी दिखाना जरा उसको। सॉरी मैडम, हीरा को हमने ऐसे फोल्डर नहीं दिया था। हर बार हम भी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। नहीं, यू कैन सी दिस, यस और नो? ये ब्लैंक है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर नीट रिजल्ट राइट? और मैंने कॉपी किया है, उसमें से नाम निकाल दिया, स्टूडेंट का मार्क्स निकाल दिया राइट है? तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू टुडे, यू आर गोइंग टू मेक योर ओन मार्कशीट विच यू वांट टू गेट ऑन 14 जून 2028, यस और नो? और इसको आप अपनी स्टडी टेबल के पास लगा के रखेंगे। पहले हम क्या डिसाइड, ओके सब आपको कहीं पे घूमने जाना है तो आप क्या डिसाइड करते हो पहले स्टूडेंट्स? बोलो। तो डेस्टिनेशन डिसाइड करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि सब कपड़े लेके पहुंच गए एयरपोर्ट पे, कौन सा टिकट अवेलेबल है दे दो। फर्स्ट यू डिसाइड व्हाट, टेल मी डेस्टिनेशन, यस और नो? इफ द डेस्टिनेशन इज नॉट क्लियर, मेक इट क्लियर प्लीज। गो एंड विजिट। दिस इज डन बाय ईरा ऑल्सो, दिस इज डन बाय माय ऑल टॉपर्स राइट? लास्ट ईयर सुरभि ने अपने घर में लगा के रखा था, मैंने दिया था उसे। आई विल शो द फोटो ऑल्सो राइट? एंड शी हैज रिटन 720 आउट ऑफ 720। शी वर्क हार्ड फॉर फर्स्ट रैंक ऑफ इंडिया। उसने फर्स्ट रैंक ऑफ इंडिया किया। सर ताली बजना चाहिए, परफेक्ट है बच्चे के लिए। अब आप बोलोगे फर्स्ट रैंक आया क्या? नहीं आया, बट शी गॉट 113 रैंक ऑफ इंडिया एंड शी वाज थर्ड इन महाराष्ट्र। कहते हैं कि चांद को पाने की कोशिश करोगे तो तारे तो मिल ही जाएंगे राइट है? धरती पे बैठ के कुछ होने वाला है नहीं। तो मेरा रिक्वेस्ट है आज घर पे आप लोग क्या करोगे, इसको बनाओगे, बराबर है? विद पेरेंट्स डिसाइड कर लो कहां पे जाना है। फिजियोथेरेपी तो फिजियोथेरेपी लिखो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इफ यू वांट टू गो फॉर आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक राइट? अच्छा सा फोटोग्राफ नया वाला एंड राइट योर स्कोर। देखो रोल नंबर है, राइट एनी नंबर विच यू वांट, राइट कैंडिडेट्स नेम यू राइट, मदर्स नेम, फादर्स नेम, एप्लीकेशन नंबर, मेन वाज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड आई हैड गिवन वन क्राइटेरिया आल्सो, कितना लिख सकते हो, बराबर है? एंड द मोमेंट यू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज सेंड मी दैट फोटो। पेरेंट्स हो जाएगा आज?
ओके आज का डेट जाने से पहले आज के दिन ये होना चाहिए प्लीज, इज माय रिक्वेस्ट राइट। और यहाँ पे स्टडी टेबल पे लगाओ एंड वन रिक्वेस्ट, डोंट चेंज दिस थ्रू आउट द ईयर विथ पेन। हाँ विथ पेन बराबर है, शैनी का एक्सपीरियंस अच्छा है। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट ने पेंसिल से लिखा, हर महीने के बाद गोल चेंज। इट्स नॉट गुड राइट। सो फर्स्ट माइंडसेट पे काम करो। आई टेल यू, दिमाग में रहेगा ना कोई गोल की अचीव करना है तो आप उसको अचीव कर सकते हो, अदरवाइज क्या होगा पता है, टाइम पास चल रहा है। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? तो ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। थैंक यू। नाउ सेकेंड पार्ट, okay, what is important? Tell me, hard work or smart work? Very good, all smart people are there, right? अब मुझे बताओ, NCERT का सब बुक बायो का याद करने का कितना स्मार्ट वर्क तुम करेगा? क्या चाहिए बोलो? हार्ड वर्क। यस और नो? केमिस्ट्री के फॉर्मुलेज याद कर रहे हैं, पूरा ऑर्गेनिक बाय हार्ट करना है, क्या करना पड़ेगा बोलो? हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क भी चाहिए बट हार्ड वर्क मैक्सिमम है, बुरा मत मानना आप लोग प्लीज। Some students they got 95-98%, they thought that now my life is what easy है। तो मेरे घर के जैसा है। My father told when I was in school, बेटा 10th कर रहे लाइफ सेट, फिर 12th आया तो बोला बेटा 12th कर रहे लाइफ सेट, फिर बोला बेटा इंजीनियरिंग कर ले लाइफ सेट, फिर बोला शादी कर ले लाइफ सेट। लाइफ में तो ऊपर नीचे होने वाला है, yes or no? Please understand this. Hard work, smart work. If you tell me, right, if you ask me, I'll say 70% is the hard work, 30% is what smart work. ओके व्हेन आई वाज स्टूडेंट राइट, आई गॉट 90% इन द 10th। मेरे साथ एक बच्चा था जिसको 85 आया था और हम लोग 3 लोग टॉपर थे। हम तीनों मस्ती करने लगे बिकॉज टॉपर थे ना, आ जाता है कभी कभी दिमाग में राइट। एंड वी वर स्टडिंग 3-4 आवर्स इन अ डे एंड ही वाज स्टडिंग एवरी डे 10 आवर्स। हम लोग बोलते तो क्या इतना घिस रहा है, तो क्या होगा? हम लोग को देख एक बार समझ में आ जाता है। उसको IIT मिला, हम लोग ने नॉर्मल इंजीनियरिंग किया। And every year I am teaching from 2003, right? This is 23 years I completed in this field, right? 3-4 बार महाराष्ट्र टॉपर हम फर्स्ट दे चुके हैं प्रभु सर सबके साथ में। I'll tell you my experience is what those who are doing hard work they are getting result, and if you only smart work will not work is a combination of both, right? Yes or no? Because some students are doing smart work, they are studying only on Saturdays, right? और जो सैटरडे को पढ़ रहा है उसको स्कोर आएगा बिकॉज योर ब्रेन इज वेरी स्ट्रांग राइट, दैट इज देयर इन द टेम्पररी मेमोरी एंड वन डे यू आर एबल टू डू दैट राइट, यू आर एबल टू परफॉर्म इन द एग्जाम, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। द बेस्ट मेथड इज व्हाट यू कंप्लीट योर प्रिपरेशन अप टू फ्राइडे, आस्क योर डाउट्स ऑन सैटरडे एंड संडे इज द टेस्ट। ठीक है, ओके वन। सो आई थिंक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट टेल मी स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। यस और नो? लिख के रखो 70% हार्ड वर्क, 30% स्मार्ट वर्क। ओके आगे चलते धीरे धीरे मैं समझाता हूँ। तो भी स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे एंड आई टॉक हाफ एन आवर फॉर दैट राइट। व्हाट इज द प्लानिंग? नॉर्मली हम ऐसे प्लान करते हैं, पेरेंट्स तो ऐसे ही प्लान करते रहेंगे ना। भाई ये क्या हो रहा है? Students, you are requested not to write, sit and listen properly. This everything will be sent on the group, the entire recording. Yes, we will send. Don't worry, right? अभिषेक जरा देख ले वहां से। हाँ, हमारी प्लानिंग ऐसे चलती है राइट है। हम ईयरली प्लान करते हैं, क्वार्टरली प्लान करते हैं, मंथली करते हैं, वीकली करते हैं, डेली करते हैं। कुछ पेरेंट्स पूरा फ्यूचर प्लान कर लेते हैं LIC के जैसा, लाइफ के साथ लाइफ के बाद राइट है कि तू भी डॉक्टर बनेगा, फिर ये करेगा वो करेगा, आगे चल के तेरा शादी कर देगी, टेंशन खत्म। ठीक है, ये प्लानिंग वर्क करेगा? आई डोंट थिंक राइट। ओके चलो देखते हैं किसको किसको क्या पता है। हाउ मेनी मंथ्स आर रिमेनिंग फॉर योर प्रिपरेशन? टेल मी। Your exam is 2028, right? How many months are remaining? Anyone? Students, calculate karo fast. Huh? 20? Yes, you want to say something? बेचारा बोर हो रहा है, इसको और फ्रूटी ला के दो। हाँ? 20? Great. 17 months. How many months? Tell me. आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो? You're not talking about 2028. I'll tell you why I'm not talking about 2028. 5 months in this year, right? Yes or no? And next year पूरा अपने पास है, तो पूरे अपने पास कितना 17 months है। करेक्ट है ये सबको? मैं बताता हूँ क्यों मैं बात नहीं कर रहा हूँ। See, this is the just you can say in the reverse way, right? 14 जुलाई 2028, नेक्स्ट जुलाई में 2028 में नेक्स्ट में आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका होगा, कहाँ पे मिलना है। Yes or no? 14 जून इज व्हाट? टेल मी योर रिजल्ट। रिवर्स में जा रहा हूं मैं। 25th of May HSC का रिजल्ट आ जाएगा।
25th में HSC रिजल्ट, राइट? उसके नीचे देखो क्या है, नीट एग्जाम इज ऑन द इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे, यस और नो? Now your exam is not on the 2nd May, it will go for 1 week, right? CBT exam है. उसके बाद में क्या है? What is this? Tell me. Maharashtra CET exam in the month of what? April. Okay. Now from this year they are going to conduct Maharashtra CET first CET in the month of December. दिसंबर में पहला CET होने वाला है, राइट है? उसके बाद में क्या है? देखो यहाँ पे JEE मेन एग्जाम, HSC एग्जाम इन द February, right? This is what JEE exam again, and 15th of January your practical will start. Board practical, yes or no? And what is this? Tell me. यहाँ तक देखो, ये पूरा कौन सा ईयर है बताओ मुझे? 2020. इधर पढ़ने का टाइम है आपके पास? नहीं है. Your seniors, you know, now they are coming to me and they are asking me, sir, अभी कैसे पढ़ने का? 5 महीने बचा है. अभी तुम्हारे पास addition 1 year है, yes or no? You have advantage, please. Okay, some students they have some style, you know, उन्होंने क्या किया पता है? 10th के लास्ट के 2 महीने में स्टडी किया और 95% आ गए. तो उनको लगता है बस यही लॉजिक इधर भी चलेगा, चलो 2 का 4 कर लेंगे, टेंशन ही नहीं, इधर भी मैं क्लियर कर रहा हूँ. ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है. I'll tell you. In the beginning of the year, in the 2-3 months only, we understand कौन क्या टॉप करने वाला है, कौन करने वाला नहीं है. If your child's name is not in the list, there is a problem, please. And अगर टाइम पास ही करना है तो फिर मेरे ख्याल से साइंस लेने की जरूरत नहीं है. You know how many seats are there in for medical in Maharashtra? Total मिला के सब कुछ 5,000. Yes or no? And number of students appearing 2,50,000. 2,50,000 और 5,000 तो 5,000 वो बच्चे रहेंगे जो पागल हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनका ही कुछ होने वाला है. ठीक है? तो आई थिंक यू नॉट गेट टाइम इन व्हाट 2028. यस और नो? We'll complete our 11th syllabus in 2027 in February and we'll start complete 12th also in November, right? So मेरे ख्याल से for study, how many months are remaining? Tell me finally. Is this clear for everyone? इसमें किसी को डाउट है? नहीं, आगे चलते हैं. चलो और थोड़ा बातें करते हैं. हाँ, no, open that. There's one planner also, right? I made this planner this year. Last year मैंने low sheet दिया था. हाँ, this is now. मुझे दिखाओ जरा. So this is one planner I made for you, right? This is a gift from my side. ठीक है? And you are going to use this planner. And this is only for 3 months. कुछ सुना आप लोगों ने? This is only for 3 महीने के बाद में ये मुझे वापस करो, complete each and every page and submit to me, right? And take another one. And every 3 months you can change this, right? But I'll tell you my experience of last year. I had given this planner to all my students on the first, 1st of January, right? I told them 6 months के लिए इसको use करो. किसी ने complete नहीं किया, except 7-8 students. Okay, so go on. Now open this planner. We'll do some practical thing, right? Open this planner. I'll explain you how to use this, right? Okay. So मेरा फोटो छोड़ दो, वो तो मैंने खुद की पब्लिसिटी के लिए डाल के रखा है. That's okay. Again, there's a cover page, right? पीछे दिख रहा है सबको? Again, the result is there, right? So you're going to write again in this booklet. What's your target? जितनी बार लिखोगे कि मुझे मेडिकल में जाना है, KE में जाना है, उतनी बार तुमको मिलेगा. There's one page, commitment page. मिला सबको? हाँ या ना? So you are going to commit, right, yourself that you are going to use this planner. Okay? What you are going to do? आय के बाद में खुद का नाम लिखने का और नीचे तुम्हारा साइन चाहिए. अब तुम बोलोगे टाइम पास सर क्यों करा रहे हो? अरे टाइम पास तो दुनिया करती है, हमारे नेता लोग भी टाइम पास करते हैं. वोट लेते हैं ना कि 5 साल में ऐसा करूंगा, ये सर नो, बाद में कुछ और करते हैं, डिफरेंट स्टोरी, राइट? बट कुछ तो लोग अच्छा करते हैं. आई टेल यू, ईच एंड एवरी एक्शन वॉट एवर यू आर डूइंग दैट गोज इन योर सबकॉन्शियस माइंड, राइट? When you're writing anything, it goes in the subconscious mind. Is clear? So today you are committing that you are going to use this planner every day. Yes or no? सब लोग कर रहे हो कमिटमेंट? कोई रीड करेगा इसको मेरी तरफ से? या चल, you read. पूरा पढ़ेगा तो. तेरा नाम? हाँ. I, Advait Patil. उधर लेके जा माइक को. हाँ. I, Advait Patil, hereby commit to no longer. Reading on behalf of all students, right? And you are committing in front of what 200 people. Please, students. सबका फोटो लेके रखना. और पढ़ाई नहीं किया तो सब 200 लोगों पे भेजने वाला. Yes, stand. आजा. Come. Correct. आजा. अद्वैत आजा. Advait is reading on behalf of all of you, right? Read Advait. I, Advait Patil, hereby commit to no longer allow myself to be subjected to inconsistency, lack of follow-through, and perseverance.
I pledge to use my daily planner every single day. एवरी सिंगल सबका कमिटमेंट आ रहा है, पेरेंट्स आप लोग सुन लो। ठीक है, आगे। I will write down my tasks, goals, and priorities each morning. I commit to checking it throughout the day and reflecting on my progress each evening. By staying organized, I unlock my full potential and achieve my goals one planned day at a time. करेक्ट, थैंक यू अद्वैत। और साइन कर देना सब लोग, और ये हर 3 महीने में करना पड़ेगा। आई टेल यू, तुमको लगेगा कि टाइम पास है, इट्स नॉट टाइम पास, राइट? ईच एंड एवरीथिंग इट गोज इन योर सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो पहला काम ये कर दिया, कमिटमेंट सबका आ गया है। सैनिक सर, हेमल सर, ये लोग पढ़ने वाले, दीपक सर स्पेशली, बेचारे बहुत परेशान रहते कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है। ओके, नेक्स्ट पेज पे जाता हूं मैं, चलिए। अभिषेक देख भाई। Okay, now open that first page. Okay, I'm not interested in your yearly plan, right? I think you should plan your week properly, yes or no? Today is what? Sunday, right? जानबूझ की मीटिंग संडे को रखा है, because Sunday you are going to plan your full week, right? कैसे प्लान करोगे? देखो यहाँ पे क्या लिखना है, this week is from which date to which date? Tell me, next week का which date to which date? Fast. So tomorrow is what? 27 to 2nd of August, right? पूरा 1 week का बात करेंगे, yes or no? Then which subject का टेस्ट we have? Physics, chemistry, maths, bio. Tell me. Next Sunday कौन सा टेस्ट है? अच्छा, ये मैं क्यों कर रहा हूँ पता है? इनको टेस्ट कभी मालूम पड़ता है? पता है, 2 दिन पहले। And some students they send me message, सर कौन सा टॉपिक का टेस्ट है? And if you see our timetable, we are sending that test in advance, yes or no? So you plan your week, what you are going to study in that week, right? Every day. That's why this weekly planning is very important, right? अच्छा, लास्ट वीक में कुछ मिस्टेक किया होगा। फॉर एग्जाम्पल आज का मिस्टेक बताओ, पेपर में किसने क्या क्या मिस्टेक किया है? चलो, यू आर गिवन दैट फिजिक्स पेपर, यस और नो? एनीवन टेल मी योर मिस्टेक? डोंट वरी, मिस्टेक सबका होता है। एनीवन? कोई नहीं बोलेगा मतलब सबको 180 आ रहा है। यस, टेल मी, एनीवन प्लीज। टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हुआ तो वहां पे लिखने का, माय लास्ट पेपर का मिस्टेक क्या था बताओ? टाइम मैनेजमेंट, यस और नो? सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू दैट? टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? टेल मी। मोर क्वेश्चंस यू सॉल्व, सो यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस मोर, यस और नो? टाइम लिमिट पे सॉल्व करना है अपने को। एनीवन एल्स प्लीज? स्टूडेंट, यस? एंजाइटी, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू फॉर दैट? I'll explain you what to do, right? Don't worry. I'm coming to that point. Anxiety. और कोई है? बोलो parents, student. Yes. Wrong answer circle किया, right answer आके wrong circle किया, ऐसे कैसे चलेगा? ये तो क्राइम है। Yes or no? पूरा solve किया, answer you got A and you are circling what B is totally wrong. Don't do this. That means concentration नहीं था एग्जाम में, right है? Otherwise there is some confusion, right है? Yes student, anyone? देखो प्रॉब्लम क्या है पता है तुमको? तुम्हारा मिस्टेक मालूम नहीं पड़ेगा तो कैसे सॉल्व करोगे? यस, एनीवन? Now you start thinking what happens in the paper. That's why I'll tell you, all toppers, if you talk to all toppers, right, what they did, you know, every Sunday after giving the test, they solved that paper again. And then what they did, you know, analysis of their what mistake, right? कितना right गया उससे ज़्यादा जानना जरूरी है कि कितना हमारा wrong गया. This Sunday test is not guarantee that you'll get medical, but this Sunday test is just one feedback, right? Yes or no? Every day, every Sunday you are giving the test, you are making some mistake, you rectify that mistake. अब फिर आप बोलोगे फिर मिस्टेक होना नहीं चाहिए, नहीं मिस्टेक तो होने ही वाला है, कुछ ना कुछ तो होगा, नया होगा. न्यू मिस्टेक वेलकम, रिपीटेशन ऑफ मिस्टेक नॉट वेलकम. टाइम मैनेजमेंट उस पर काम कर, नेक्स्ट टाइम से टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. क्लियर? एंजाइटी पे काम करना पड़ेगा. यस और नो? Is this clear for everyone? So you are going to write what mistake you did in the last week and what's the learning from that mistake, right? Then you, okay, next Sunday which test you have? Huh? Physics and? In chemistry how many chapters? 1. तो यहाँ पे लिखो chemistry का 1 chapter, but in that 1 chapter what you are going to study? Internal booklet, some other books, yes or no, NCERT. यहाँ पे लिखो ये पढ़ना पड़ेगा. Physics का कौन सा टेस्ट है बताओ? How many chapters? You have physics also ना? Measurements and? तो यहाँ पे लिखो measurement vector, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? Internal booklet, Marvel,
papers, yes or no? And suppose I have done Marvel, मेरा Marvel हो गया, suppose मेरा paper हो गया, internal booklet हो गया है, then what is the priority? Marvel is remaining right, यहाँ पे priority लिखो. Is this clear? So now today only you are going to start this using this booklet from today only, right? Today you are going to use it first page, weekly planner, yes or no? Is clear for everyone? बराबर है. फिर यहाँ पे क्या ले, हाँ, this is interesting, right? Okay, now it's important. How much you are scoring today? फिजिक्स में कितना आएगा? 120 आएगा, राइट है. तो यू आर गोइंग टू राइट माय लास्ट स्कोर इज व्हाट 120 इन फिजिक्स, राइट? यस और नो? हाउ मच यू वांट टू स्कोर इन द फाइनल एग्जाम नीट में? 150, राइट है. तो यहाँ पे लिखने का माय फाइनल टारगेट इज 150 इन फिजिक्स, यस और नो? हाउ मच यू गॉट दिस टाइम? 120. पर अपने को कहाँ पे जाने का है? तो क्या करेंगे यहाँ पे, क्या लिखने का? 150, yes or no? नहीं. Now today you got 120, you write next time I want to score 125. Understand one important thing please. कुछ बच्चों को मेडिकल में एडमिशन इसलिए भी नहीं मिल रहा है क्योंकि सबका टारगेट क्या है? KEM. KEM is the ultimate target, no problem, but go step by step, right? I want to achieve what? I want to get 150 in the physics paper, but today I got 120. तो मैं क्या करूँगा? Next time I want to score what? 125. उसके बाद में 1, then 1. Is this clear for everyone? Especially your preparation from Monday and complete up to and Saturday only for. तो अभी मैं पेरेंट्स से पूछ रहा हूँ कि आपका बच्चा 6 के 6 दिन पढ़ रहा है क्या? मुझे मत बताओ, आप अपने से बात कर लेना प्लीज. ठीक है, वापस आता हूं मैं. So now you know for physics you are going to do so and so 1 2 3 4 करना है, बायो में 1 2 3 4 करना है, केमिस्ट्री में 1 2 3 4. You can plan your day, right? You can plan this week, yes or no? I think this page is clear for everyone. Yes sir, बराबर है. तो आज के दिन जाके पहले वीकली प्लानर तुम लोग बनाओगे, and from today only you are going to use this planner, right? And every week we will check. And personally मैं चेक करने वाला पहले 2 वीक. नेक्स्ट देखो क्या है. ओके, नाउ विल कम टू द डेली प्लानर, राइट? डेली प्लानिंग कैसे कर रहा है, ठीक है? इन 1 डे हाउ मेनी आवर्स? बोलो. हाँ, सबको उतना ही मिलता है, उतना ही होता है, लेकिन कोई टॉप करता है, कोई कुछ भी नहीं करता है, राइट है? अब मैं बता रहा हूँ आपके पास 24 आवर्स का डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज ओनली फॉर 6 मंथ, राइट? आफ्टर दैट इट विल चेंज. I can say 12 plus 12, right? 8 hours तो sleep rest में जाएगा. You should sleep at least 6 to 7 hours minimum, but not more than that. If you're sleeping less than 6 hours, थोड़ी जल्दी तुम बीमार पड़ने वाले हो. और जो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे से ज़्यादा सो रहा है ऑलरेडी बीमार है, तो डॉक्टर को मिल ही लेना चाहिए इमीडिएटली, राइट है? Your sleep should be what, between 6 to. This type of exam required, you know, मेंटल स्टेबल एंड व्हाट रिलैक्सेशन ऑल्सो, राइट? तो सोना सबसे अच्छा है. सोते टाइम पे जितना भी डेटा है माइंड में वो सब अच्छे से स्टोर होता है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. सो 8 आवर्स का क्या रहेगा बताओ मुझे? सॉरी, हाँ, 8 आवर्स स्लीप एंड रेस्ट. अच्छा, इसमें मैं बाद में आता हूँ अदर एक्टिविटी पे. एवरी डे यू हैव 6 आवर्स लेक्चर, यस और नो? अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स ऑफलाइन ऑनलाइन सब काउंट करके, राइट है? तो सेल्फ स्टडी कितना होना चाहिए? और बच्चा कितना टाइम है? 4 आवर्स. 4 आवर्स में तुम्हारा ट्रैवलिंग हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, सब यूज होना चाहिए, राइट है? अब मुझे बताओ, स्लीप तो कंपलसरी है, यस और नो? लेक्चर्स कंपलसरी, राइट है? अगर मैंने एक्टिविटी इधर बढ़ा दिया अदर एक्टिविटी में, आई एम यूजिंग मोबाइल फॉर 6 आवर्स, आई एम वॉचिंग टीवी ऑल्सो, राइट? आई एम गोइंग विथ माई फ्रेंड्स आउटसाइड एवरी डे, मैं 1-2 घंटा खेलने भी जा रहा हूं, तो पता है कौन सा टाइम जाने वाला है आपके हाथ से? ये वाला. एंड पूरा गेम मेडिकल का, इंजीनियरिंग का और नीट का है, वो सेल्फ स्टडी का गेम है. अंडरस्टैंड दिस. मुझे पता है इस मीटिंग के बाद पेरेंट्स को बहुत टेंशन आएगा, स्टूडेंट्स को ज्यादा आएगा. पेरेंट्स तो खुश हो जाएंगे, मेरी साइड में आ जाएंगे. अंडरस्टैंड सेल्फ स्टडी, राइट? Some students, good students, they are doing this activity hardly for 1 hour or 2 hours, right? And they are doing maximum what self study. I'll tell you, if you start studying from now, 6 hours are more than enough. कितना? 6 hours other than your class. Yes or no? But if you start from Diwali, then 8 hours. If you start from next July, then 12 hours. And if you start from next Diwali, then don't start.
मुझे मिलना, मैं ऑफर दूंगा रिपीटर बैच में कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। होने वाला ही नहीं है, आई टेल यू। नाउ वी नो क्लियरली इन 2027 बैच कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। They are having only 5 months. Understand this, right? Suppose I am in 2027 batch and I want to give exam in 27, right? So how many months I have for study? 5. 5 into 3. 5 into 3. तो 150 days है, 30 days in 1 month. Yes or no? आपको पता है तीनों सब्जेक्ट के मिला के चैप्टर्स कितने हैं? 110. चलो 4-5 चैप्टर निकाल दिया केमिस्ट्री में से, बायो में से, राइट? तो 100 चैप्टर्स आर देयर। इज इट पॉसिबल टू कंप्लीट 100 चैप्टर्स इन 150 डेज? इम्पॉसिबल। और यहाँ पे हम लोग गेम पीछे हो जाता है, क्योंकि मुझे है ना इस बैच में भी बहुत से लोग अभी सीरियस दिख नहीं रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस सेमिनार इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन, यस और नो? अब आ जाते हैं सबसे मेन प्लानिंग इज व्हाट? मॉर्निंग डेली प्लानिंग, राइट? ओपन दैट फर्स्ट पेज आफ्टर द वीकली प्लानर। नाउ all students and please see parents what they are doing. Now you can see left and right, yes or no? Left में क्या लिखा है मैंने? मॉर्निंग माइंडसेट। सुबह उठते ही माइंडसेट क्लियर करना है कि आज मुझे दिन में करना क्या है, और रात को हम उसको लिखेंगे हमने क्या किया, राइट है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जरा देख लेना। हाँ, यू कैन राइट द टुमारोज डेट। फॉर एग्जाम्पल टुमारोज डेट इज व्हाट? टेल मी। 27। देन यू सिलेक्ट मंडे। देन यू राइट सम अफर्मेशंस। ये अफर्मेशंस क्या है पता है? हम लोग को हमारे बारे में बहुत सी नेगेटिव थॉट्स आ गए, राइट? 2 दिन पहले मैं ईरा के घर पे गया और मैंने वहां पे देखा कि शी हैज पुट दैट अफर्मेशंस ऑन दैट, you know, that cupboard, right? Yes or no? That I had given last time. So I thought I should give what as a printout only this time. Now just from the folder remove that affirmation, all of you. निकालो जरा। ये आपको रोज रिपीट करना है, like your, you know, सूत्राज, right? मिला सबको? बोलो। अब क्या होता है पता है? जब भी छोटा बच्चा रहता है उसके पास बहुत एनर्जी रहती है, बट धीरे धीरे उसके दिमाग में हम नेगेटिव चीजें डाल देते हैं। आई टेल यू, आपने बच्चे के दिमाग में क्या डाल के रखा है? योर मैथ्स इज नॉट गुड, योर कैलकुलेशंस आर बैड, यू आर नॉट गुड इन स्टडी, योर मेमोरी इज वीक। यस और नो? सो स्टूडेंट्स, यू आर गोइंग टू रिपीट दिस एवरी डे। आई टेल यू, माइंड सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? समझ में आ रहा है सबको? अगर आप फिजिक्स का पेपर दे रहे हो एंड यू आर सेइंग दैट माय मेमोरी इज वीक, आई टेल यू, यू विल नॉट गेट एनी आंसर फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड। एंड द मोमेंट यू से दैट आई नो ईच एंड एवरीथिंग, यू स्टार्ट गेटिंग आंसर। योर ब्रेन हैज 2 parts, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। यू नो कॉन्शियस इज ओनली 2% एंड 98% इज सबकॉन्शियस। राइट नाउ यू आर लिसनिंग मी, राइट? आप सोच रहे हो इतना क्यों बोल रहा है, क्यों इतना बात कर रहा है? दैट इज थ्रू विच माइंड? टेल मी। कॉन्शियस। बट डेटा किधर स्टोर हो रहा है? सबकॉन्शियस। So you repeat this affirmations every day. I'll tell you, ये जो पेज है ना, घर पे आप स्टडी टेबल के पास में लगा के रखो और हर दिन पढ़ना चाहिए। और सिर्फ जस्ट 2 साल के लिए नहीं, आगे भी काम आएगा। हीरा ने पूरा सब हटा दिया, लेकिन अफर्मेशंस रखा है अभी भी, यही राइट है ना? So now I'm giving you right print out directly. So we are going to use this, right? What is the first one? Tell me. Read सब लोग। I am the इसका इफेक्ट बताता हूँ। I am the best का इफेक्ट बताता हूँ। लास्ट ईयर 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर क्लास ओनली, राइट? आई विल नॉट टेल द नेम, नाम सबको पता रहेगा। एक स्टूडेंट पूरे 2 साल तक है ना टॉपर थी, दोनों टॉपर थे। अब माइंडसेट क्या होता है? 2024 पेपर वाज इजी, यस और नो? सबसे इजी पेपर था पूरे मेरे करियर का, नीट का, 2024। एंड देन 2025 वाज डिफिकल्ट पेपर, और 26 तो उसका भी बाप निकला। फिजिक्स पेपर आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओवरऑल, यस और नो? अब क्या हुआ? 2025 में सबके ऊपर ऐसा बॉम्ब गिरा, बच्चों के ऊपर। तो 2 स्टूडेंट्स वर इन द क्लास। सोचो माइंडसेट क्या है। एक स्टूडेंट सोच रहा है कि मुझे नहीं आ रहा है, मतलब दुनिया में किसी को नहीं आ रहा है। दिस वाज द माइंडसेट, राइट? इफ आई एम नॉट गेटिंग, दैट मींस नो वन इज गेटिंग इन इंडिया, राइट? सो इफ आई एम नॉट गेटिंग दिस क्वेश्चन, दैट मींस किसी को भी नहीं आ रहा है। और दूसरे ने क्या सोचना चालू किया पता है? ओनली आई एम नॉट गेटिंग, अदर्स आर गेटिंग। तो एक प्रेशर में चली गई और एक कॉन्फिडेंस में रही, राइट है? और यहां पे इस गेम पूरा चेंज हो गया। मेरे सबको पता है किसका नाम मैं ले रहा हूं, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है? दैट्स ओके। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? तो माइंड सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सब लोग बोलो, आई एम गुड एट, स्टार्ट सेइंग आई एम गुड एट टाइम मैनेजमेंट, राइट? यस और नो? नेक्स्ट वन, आई नो ऑल सब्जेक्ट्स यू नो, प्लीज डोंट से ओनली बाय यू नो। नेक्स्ट वन इज व्हाट? टेल मी। माय मेमोरी इज, कोई बोलते हैं सर मेरे को याद ही नहीं आता है, क्या करूं मैं? सबको उतना ही न्यूरॉन्स मिला है ऊपर से, 80 billion neurons you have, right?
80 बिलियन, बिलियन का मीनिंग मालूम है सबको? ढूंढ के निकालना बिलियन क्या होता है। एंड वन न्यूरॉन कैपेसिटी इज 82 GB। इतना मेमोरी तुम्हारे पास है, तुम रोते रहते हो मेरा मेमोरी वीक है। अच्छा, वो मेमोरी बायो में काम कर रहा है, बायो में सब याद आ रहा है सर। आप कुछ भी बोलो, कोने से उठा के आबरा का डाबरा, आपको सब याद है। फिजिक्स में कुछ भी याद नहीं आता सर, फिजिक्स में मेमोरी खराब है। दैट्स व्हाई वाज द स्टेटमेंट इन मी, आई नो ऑल सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट वन, माय मेमोरी इज, देन आई एम एंजॉयिंग एग्जाम। ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपके घर में ना संडे सुबह खतरनाक होता है, यस और नो पेरेंट्स, एम आई करेक्ट? मॉर्निंग में टेंशन चालू। अच्छा, मेरी बेटी खतरनाक थी, वो तो 2 दिन पहले से घर में माहौल बनाती थी। मम्मी के पास जाके, मम्मी फिजिक्स खतरनाक है, तो मम्मी बोलती पापा को भी पूछ ले। नहीं, पापा को क्या पूछे, पापा बोले तो बेटी को ही नहीं आता। और फिर सैटरडे रात को उसको चालू एसिडिटी हेडेक, और संडे तक सब एसिडिटी हेडेक चालू हो जाता है। दैट्स व्हाई यू से एवरी डे आई एंजॉय एग्जाम्स, यस और नो? नेक्स्ट वन इज व्हाट, टेल मी? आई एम कंप्लीटिंग माई पेपर बिफोर। नेक्स्ट वन, आज सुबह बाहर से बहुत से लोग बोल रहे थे पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, आई लेफ्ट 4 MCQs, आई लेफ्ट 6 MCQs। नेक्स्ट वन, टेल मी? आई एम गेटिंग ऑल, आई एम काम एंड आई एम पॉजिटिव। प्लीज रिपीट दिस एवरी डे, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। डॉक्टर के जैसा बात कर रहा हूं मैं। करोगे सब लोग स्टूडेंट्स? तुमको लगेगा टाइम पास है, टाइम पास नहीं है, यही सब काम आएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, चलो। हाउ मेनी आवर्स स्टडी मैंने बोला? What the first in that, tell me, 1 hour का? Whatever you are studying today, please revise on the same day. Yes or no? 1 hour teaching, revision takes only 10 minutes. So the ratio is what? 1:6, right? तो अगर मैंने 100 minutes पढ़ा है तो मेरा रिविजन 15 मिनट में हो जाएगा। And 1 lecture is for 100 minutes only, right? So 3 lectures, maximum revision will take what? 45 minutes. But हम लोग रिवाइज नहीं करते, क्यों? आज ही तो पढ़ा है, अपने को सब आता है। Revision is important, right? I'll tell you one by one आता हूँ। चलो, what is the second one? Tell me. Homework on the same day. ये interesting है। They get 1 week का timetable, right? And they know that now this Monday का teacher will come directly on next Monday. तो homework कभी होगा पता है? Sunday को रात को। अब Sunday रात को जब भी तुम homework करने बैठोगे, कितना दिन गैप हो गया? 6 days का, right है? तो 6 days में पूरा memory से वो बाहर निकल गया। फिर होमवर्क नहीं आता है, फिर हम क्या करते हैं? चैट जीपीटी। अच्छा, कुछ लोग चैट जीपीटी यूज, बिकॉज पेरेंट्स ने मोबाइल नहीं दिया, सर मैं तो मोबाइल यूज नहीं करता, तो उन्होंने क्या किया पता है? फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट करने का। सम स्टूडेंट दे नो दे मेड देयर व्हाट्सएप ग्रुप, राइट? एंड दे आस्क्ड ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप व्हाट इज द होमवर्क फॉर टुडे। देन हाउ मेनी ऑफ यू एनीवन हैज डन द होमवर्क? यस। तो फोटो निकाल के डाल दिया और सब उसी को कॉपी करके लेके आ गए। घाटकोपर में मैंने चेक किया लास्ट वीक में होमवर्क, एंड आई थॉट कि 1 न्यूमेरिकल देखते हैं कि चैट जीपीटी में क्या दिया है। एंड आई टेल यू, सेम एमसीक्यू का, सेम स्टेप्स का सबके पास कॉपी था। एंड इफ यू आर डूइंग इन दिस वे, यू विल नॉट गेट मेडिसिन। प्लीज, आपको चाहे कुछ भी लगे, नहीं मिलेगा। वॉट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट ट्राइंग टू यू स्पेंड योर डे प्रॉपरली, राइट? पॉजिटिवली, कि कोई आज कुछ बोलना नहीं चाहिए मेरा, कैसे तो दिन निकल जाए, तो नीट में कुछ आएगा नहीं। दैट्स व्हाई संडे टेस्ट इज अ प्रॉपर फीडबैक, राइट? What does this tell me? Test preparation, right? How many hours minimum? Is this clear for everyone? 6 hours भी कैसे पढ़ना है, right? आगे चलते हैं। Homework कभी करना चाहिए? This is also one type of what? Is this clear? Next one. You can see this graph. You know what is this? It's a memory recall, right? 10 मिनट्स में आपको सब कुछ याद रहता है और 1 दिन के बाद हम इतना भूल जाते हैं। दिख रहा है सबको ये पोर्शन? यस सर, प्लीज, नो इशू। ओके, बट इफ यू रिवाइज विद इन द प्रॉपर इंटरवल, 1 week, 1 day and 1 week, then it will remain what? Constant, right? So in the planner only, if you see last 2 pages, देखो last 2 pages में एक पेज ऐड किया हुआ है, रिविजन टेक्निक। सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट रहेगा, आई डोंट नो। यू विल गेट दिस टाइप ऑफ पेज, yes or no? You are going to read this page properly. Why to revise? First revision within 1 day, within 24 hours में पहला revision होना चाहिए। Second revision within 1, third revision within 1 what? Please you don't worry about this monthly revision, हम लोग कर लेंगे in terms of tests, right? But what you complete, at least first day का revision and 1 week revision.
ओके, हाँ ये सबको मिला, सबको ये पेज, दिस वन राइट, यू कैन रीड ऑन दिस पेज. ये साइंटिफिक है एंड दिस इज फ्रॉम इंटरनेट, आई गॉट राइट, डोंट वरी, मैंने कुछ नहीं लिखा इसमें. ओके, नेक्स्ट वन, दैट्स व्हाई स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम, बोलो, कंप्लीट अप टू डिस्पाइट एनी डाउट राइट, एंड सैटरडे इज ओनली फॉर व्हाट. बट पता है हमारे घर में क्या हो रहा है, वी स्टार्ट फ्रॉम सैटरडे मॉर्निंग, वी नेवर कंप्लीट आवर प्रिपरेशन एंड वी गिव संडे टेस्ट. अच्छा, किसी किसी पेरेंट्स को तो लगता होगा कि सैटरडे का दिन आपके घर पे बहुत अच्छा होगा, आपका बच्चा रात तक पढ़ रहा है, संडे को सुबह उठ के पढ़ रहा है, और आपको लग रहा है बस मेरा पैसा वसूल है तो डॉक्टर बनने वाला है. एंड देन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे अगेन यू आर कंफ्यूज कि क्या हो रहा है. किसी घर में ऐसा चल रहा है बताइए, लास्ट मोमेंट का स्टडी. पेरेंट्स प्लीज टेल मी, one parent right, yes parents please, I need proper feedback so that we can work on that right, and if they are doing last minute ka study it will not work. It's clear. अभी आप लोग बोलेंगे इतना तो क्यों ज्ञान दे रहा है, मैं बताता हूँ क्यों ज्ञान दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ किया हुआ है इसके ऊपर. आई एम ट्रेन यू नो स्पीड रीड मेमोरी ट्रेनर एंड स्टडी स्किल ट्रेनर, मैंने सब कुछ कोर्सेज किया हुआ है फॉर माई सन एंड डॉटर, और अब मैं आप लोग को सब कुछ सिखा रहा हूँ. ठीक है, ये सब है. अभी थोड़ा और बातें कर लेते हैं. शुड यू स्टडी ड्यूरिंग डे और नाइट? पेरेंट्स को क्या लगता है कभी पढ़ना चाहिए, मॉर्निंग में कि रात को? मॉर्निंग ना, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चा जब पढ़ना चाहे उसको पढ़ने दो. आई टेल यू देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, एक मॉर्निंग का टाइप, एक रात का टाइप. यस और नो? दोनों वर्क करता है, कोई इशू नहीं है. मेरे डैडी मुझे बोलते थे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने का, मुझे ब्रह्म मुहूर्त में ज़्यादा नींद आती तो मैं क्या करूँ. So if you want to study night, you can study night, but please don't sleep in the lecture. It's my request to all of you, right? Yes or no? What about this? Should we study one subject or more than one subject? That depends on your style of studying, right? If you're comfortable with two subjects, you can do two. If you're three with three, one to one. किसी को लगता है कि मैंने स्टार्ट किया तो मुझे पूरा कंप्लीट करने दो. किसी को लगता है ये बोर हो गया, अभी दूसरा स्टार्ट करता है. But maximum two, not three, है? Please. 3 में प्रॉब्लम क्या होता है पता है? वी ऑलवेज स्टार्ट विद बायोलॉजी, देन वी कंप्लीट केमिस्ट्री, द मोमेंट फिजिक्स कम्स कल करेंगे, हेडेक हो रहा है. सेकेंड डे अगेन वी स्टार्ट विद बायोलॉजी, अगेन केमिस्ट्री, फिजिक्स, अरे क्या यार बहुत बोर होता है, कितना खतरनाक है, क्या सर पढ़ाते समझ में नहीं आ रहा है. बायो कितना अच्छा है, याद कर लिया काम हो गया. प्लीज, दैट डिपेंड्स ऑन ग्रुप स्टडी और इंडिविजुअल. इंडिविजुअल राइट. For revision you can do group study, yes or no? But group भी अच्छा होना चाहिए. 2019 सांगली में मेरे पास 4 स्टूडेंट्स थे. I'll tell you, साइराज माने he got 34th rank of India, and 4 students were there. Sairaj was very good in physics and he was not good in what biology. उसका बायोलॉजी याद करने में बोर होता था. उसने स्मार्ट वर्क किया, 3 लोगों को पकड़ा जो बायो में सबसे अच्छे हैं, और उनको बोला मेरा तो वाइवा लेने का. तो तीनों बोला कि मैं तुम्हारा वाइवा लेगा तो तू मेरे को क्या दे? बोला मैं तुझे फिजिक्स पढ़ाऊंगा. एंड ही टॉट ऑल 3 स्टूडेंट्स व्हाट फिजिक्स, और तीनों ने मिलकर उसका बायो का वाइवा लिया और तीनों केईएम में गए, चारों केईएम में गए. फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए, नहीं तो क्या और पता है, मेरा फ्रेंड है, मैं पढ़ रहा हूँ, बोलता है चल ना थोड़ा घूम के आते हैं. अरे क्या यार बोर हो रहा है हम लोग. अब वो कैसे होता है पता है, आई ऑल्सो लाइक बायोलॉजी, मेरा फ्रेंड भी बायोलॉजी है, वो भी बायोलॉजी, तीनों लोग बायो मिलकर पढ़ लेते हैं. केमिस्ट्री का टाइम आता है तो बोलते हैं क्या फालतू सब्जेक्ट है, और फिजिक्स आते बोलते खतरनाक है, छोड़ ही दो. प्लीज ग्रुप भी सोच समझ के बनाना. और एक डेंजरस ग्रुप है इन योर सोसाइटी. यू आर साइंस स्टूडेंट एंड योर फ्रेंड इज आर्ट्स, दूसरा फ्रेंड्स कॉमर्स. उनका लाइफ एकदम सेट है, अच्छे से चल रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, शाम को 2 घंटा फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, और अपना भी मन कर रहा है इनके साथ खेलना चाहिए. वो डेंजरस है. देखो आर्ट्स कॉमर्स में भी हार्डवर्क है, यस और नो? बट थोड़ा सा मैं सिचुएशन बताता हूँ. साइंस का हार्डवर्क 11th 12th में ज्यादा है, और आर्ट्स कॉमर्स का हार्डवर्क है ना ग्रेजुएशन के बाद बहुत ज्यादा है. जब उनको सीए बनना है तो हार्डवर्क कर रहे हैं. डिफिकल्ट एग्जाम, वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्जाम, राइट है. आफ्टर आर्ट्स दे वांट टू गो फॉर आईएएस, दैट यूपीएससी एग्जाम आल्सो डिफिकल्ट, राइट. बट साइंस में प्रॉब्लम क्या पता है, 11th 12th इज ओनली डिफिकल्ट, इनिशियली ओनली डिफिकल्ट, राइट. डिफिकल्ट तो सब सब्जेक्ट है. तो प्लीज आपको फ्रेंड्स भी सोच समझ के सिलेक्ट करना चाहिए. ठीक है, आगे एक्सरसाइज करना चाहिए दिन में एटलीस्ट हाफ एन आवर. That will reduce your stress level.
बट एक्सरसाइज के नाम पे हर दिन 3 घंटा खेलने का नहीं। समझ में आ रहा है? खाना घर का। ऑल पेरेंट्स, ऑल मम्मीज यहाँ पे जो बैठी है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप अपने बच्चे को टिफिन दो। समझ में आ रहा है? आपका बच्चा बोलेगा मैं बड़ा हो गया। कितना बड़ा हो गया? 5 महीने का। अप टू मार्च वो लोग छोटे थे, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने में बड़े हो गए। ओके, आर यू गोइंग इन द कॉलेज? एनीवन इन दिस ग्रुप? ऑल इन द टाइप कॉलेज और नो? कोई कॉलेज अटेंड कर रहा है? अभी हम लोग वजी कॉलेज में बैठे, कोई यहाँ पे आता है पढ़ने के लिए? तुम्हारे लाइफ का कॉलेज हमने छीन लिया है, दोनों, अभंग सर, अविनाश सर, सबने मिल गए। सो यू आर नॉट इन कॉलेज, यू आर नॉट इन स्कूल, यस और नो? यू आर इन क्लासेस। वो सबसे वर्स्ट होता है। आप अपने बच्चे को टिफिन दो, इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल पेरेंट्स। अदरवाइज एवरी ईयर देर आर 2-3 केसेस, राइट? एग्जाम के टाइम पे ही बच्चा बीमार पड़ता है, पूरे साल भर का हार्डवर्क गया। स्पेशली अगर होमवर्क नहीं करता है तो पक्का। हाँ, वो तो बीमारी अलग ही है। होमवर्क नहीं किया तो बीमार पड़ता है, एग्जाम फिजिक्स के पहले बीमार पड़ता है। एक सबसे खतरनाक बीमारी लूज मोशन, जो मुझे पता नहीं चलता हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, थोड़ा ओपनली बात कर रहा हूँ, दैट्स ओके। ये सब एक्सपीरियंस है मेरा। एक बच्चा था मेरे पास पार्ला में, हर बार फिजिक्स के पहले, सर इसको लूज मोशन होता है। मतलब मैडम फिजिक्स के पहले लूज मोशन होता है? व्हाट अबाउट केमिस्ट्री, बायोलॉजी? नहीं, उसमें कुछ होता नहीं है। मतलब फिर आप चेक करो कि हो रहा है कि नहीं, कैमरा लगा उधर। ओके, सो प्लीज टेक केयर ऑफ फूड, राइट? इट्स माय रिक्वेस्ट। हाँ, अभी हम आ जाते हैं डेली प्लानर। प्लीज ओपन द डेली प्लानर, लेफ्ट हैंड साइड। सो अफर्मेशन इज क्लियर फॉर एवरीवन? यस और नो? यहां पे तुम लिखोगे कि आज के दिन तुमको 3 क्या मेन प्रायोरिटी करना है, क्या करना है। एंड डेफिनेटली दिस इज फॉर स्टडी, राइट? राइट स्टडी गोल्स, डोंट राइट आई वांट टू गो फॉर मूवी। ओके, एंड देन दिस इज और 3 थिंग्स यू आर गोइंग टू डू एवरी डे। विच 3 थिंग्स टेल मी? डेली रिविजन, होमवर्क एंड ये तुमको हर दिन लिखने का है। माई फाइनल गोल, माई लास्ट स्कोर, माई टारगेट दिस मंथ, दिस वीक, राइट? अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये पेज दिख रहा है सबको? जस्ट काउंट हाउ मेनी रोज आर देयर, जस्ट काउंट करो सब लोग, कितने रोज है? 15 रहेगा मेरे ख्याल से, राइट? यस और नो? लास्ट ईयर मैंने जब टॉपर से पूछा, इस साल भी पूछा, एट द एंड ऑफ द ईयर दे स्टडीड एवरी डे 14 to 15 आवर्स। बरोबर ना मैडम? 14-15 घंटे का स्टडी वो लोग करते थे लास्ट में, राइट? इनिशियली नहीं होता था बिकॉज ऑफ द क्लासेस। So you can plan each and every hour. For example, suppose you reach home at 2 o'clock. I just give an example, right? कल का प्लानिंग आज रात को तुम लोग करोगे। You reach home at 2 o'clock. कितना टाइम है मेरे पास? 10 मिनट, खत्म कर दूंगा। You reach home at 2 o'clock, then you write 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, पूरा लिखो सोने तक का। और आगे लिखो कि तुम कल क्या करने वाले हो। इसको बोलते टाइम ब्लॉकिंग, each and every hour. Yes or no? Is this clear? So you write in detail. Suppose this is the 5 to 6 का time and you want to go for gym. No problem. यहाँ पे लिखो gym. कल मुझे कहीं घूमने जाने का, यहाँ पे लिखो no problem. लिखो क्लियर तो लिखो क्या चल रहा है। एंड इसमें मिनिमम तुम्हारा प्लानिंग कितने घंटे का होना चाहिए स्टडी का, बताओ? मिनिमम 6 hours. This page is clear for everyone? So you can use this page every morning. Otherwise चलो मॉर्निंग में बोलोगे मेरा क्लास होता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा रात को यूज करो कल का प्लानिंग और मॉर्निंग में उसको रीड करो। तो मॉर्निंग माइंडसेट इज क्लियर, व्हाट यू वांट टू डू टुडे, यस और नो? ओके, आपका स्टडी रूम कैसा होना चाहिए? स्टडी रूम एकदम नीट एंड क्लीन। ऐसा होता है कभी कभी स्टडी रूम पे स्टडी टेबल, फिजिक्स का बुक और साइड में मोबाइल भी चल रहा है। अदरवाइज देयर इज अनदर बुक आल्सो, राइट? बायो एंड फिजिक्स। नाउ सेकंड एमसीक्यू यू आर नॉट गेटिंग। 5 मिनट हो गया, नहीं आ रहा है। फिर क्या करेगा? फिजिक्स को बंद किया, अविनाश को 2 गाली, सैनिक को 2 गाली, न्यूटन को 2 गाली कि उसके एप्पल क्यों गिरा, नारियल क्यों नहीं गिर गया, बॉम्ब क्यों नहीं गिर गया, और फिर हम लोग उठा के बायो पढ़ना चालू करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। You decided that 1 hour I want to study physics, that 1 hour you study only physics, yes or no? This is the time blocking, right? And don't keep any other book on the table. So your table should be neat and clean. और जो बुक से सब कबर्ड में रखो, जो बुक पढ़ना है वही टेबल पे रखो प्लीज। आप घर पे जाके स्टूडेंट्स का टेबल देखो, अगर टेबल में सब प्रॉब्लम है तो समझ जाने का। अच्छा, कुछ लोग तो वहाँ पे नॉवेल भी रखते हैं, बोर हुआ तो पढ़ने का। इट्स नॉट गुड, राइट? हाउ टू अरेंज बुक्स मैंने बता दिया, हाउ टू अरेंज बुक्स, यस और नो?
नेक्स्ट वन, हाउ टू सिट एंड स्टडी. सपोज यू वांट टू स्टडी फ्रॉम 6 to 7. अब मैं बताता हूँ स्टडी कैसे होता है. 15 मिनट का स्टडी और आधे घंटे का वॉशरूम गए, किचन में गए, कुछ खाया, कुछ किया, वापस आ गए. Okay, now in the NEET exam you are going to sit at one place for minimum how many hours, tell me? 4 hours. And we are going to enter in the examination hall at 11 o'clock, right? बरोबर ना? और बाहर कभी आते हैं लोग 5:30 6 o'clock, तो 11 से 6 उनको खाने भी नहीं मिलता है. और यहाँ पे अपने को हर मिनट में, अभी आपके बच्चे का अगर वजन बढ़ रहा है तो समझ जाना कि स्टडी के बीच में खा रहे हो. तो सिट एट वन प्लेस, डिसाइड आई वांट टू स्टडी 1 hour फिजिक्स. तो फिजिक्स पढ़ने का नहीं आ रहा है फिर भी पढ़ते रहो, 5 मिनट के बाद आना चालू होगा. ओके, बिफोर दैट यू गो वॉशरूम, कंप्लीट करो टास्क, पानी रखो साथ में, नो इशू. ओके, सो इन दिस वे यू कैन स्टडी अकॉर्डिंग टू योर प्लान. नाउ नेक्स्ट साइड मिला सबको. ये कभी यूज कर रहा है पता है? इवनिंग में यूज करना है. आफ्टर कंप्लीटिंग ईच एंड एवरी टास्क यू आर गोइंग टू राइट व्हाट यू अचीव ऑन दैट डे, राइट? फॉर एग्जांपल, you think that you are not able to complete 50 MCQs in 1 hour, right? And that day you completed 60 MCQs in 1 hour. तो अचीवमेंट हुआ कि नहीं? वहां पे लिखो, छोटा छोटा अचीवमेंट भी लिखो. Okay, you done your, you followed your planner properly and you did each and everything on that day, right? ठीक है. अब कुछ प्रॉब्लम, अच्छा यहाँ पे क्या लिखना है पता है? इफ यू सी प्रॉपरली लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों मैच कर रहा है, राइट है? तो सपोज यू डिसाइडेड लेफ्ट हैंड साइड कि आई वांट टू डू फिजिक्स, और यहाँ पे तुमने कुछ और किया, तो लिखो तुमने एक्चुअल क्या किया. पता चला लिखा है तो फिजिक्स, और कर क्या रहे पता है? गेम खेल रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं. एक्चुअल लिखो क्या चल रहा है, राइट है? इज दिस क्लियर? एंड इफ यू सी द लेफ्ट हैंड साइड देयर आर सम बॉक्स आल्सो, राइट ना, टिक करने के लिए. तो अगर मेरा एक्चुअल और प्लानर दोनों मैच कर रहा है तो वहां पे टिक करो, राइट, कि कितना मैंने फॉलो कर लिया है. And only for study, not for time pass. Then you write my biggest learning today. आज मैंने क्या ज़्यादा अच्छे से लर्न किया. और ये भी बहुत ज़रूरी है, ग्रेटफुल. इन बच्चों को लगता है ना अपनी लाइफ में सब खत्म हो गया साइंस लेके. ऐसा मत सोचो प्लीज, ठीक है? There are so many students, they are not getting chance to study also, right? NEET. They are not getting classes like us, right? तो आपके पास बहुत चांस है, बहुत कुछ मिला है पढ़ने के लिए. तो कुछ तो लिखो यहाँ पे. कुछ नहीं तो ऑक्सीजन मिल रहा है, खाने को मिल रहा है सबको. एनीवन इज वर्किंग पार्ट टाइम जॉब, योर पेरेंट्स आर गिविंग ईच एंड एवरीथिंग टू यू, राइट? और यहाँ पे कितने पेरेंट्स बैठे हैं मेरे जैसे जिन्होंने पार्ट टाइम जॉब भी किया रहेगा पढ़ने के साथ साथ. तो प्लीज लिखो, यू आर ग्रेटफुल, यार पेरेंट्स सब आपको हेल्प कर रहे हैं. एंड देन अगेन यू राइट व्हाट इज दिस, टेल मी. समरी लिखते हैं, आज का लेक्चर आवर्स कितना था, देन स्टडी आवर्स क्या किया, एक्सरसाइज कितना किया, इसमें जो मैच नहीं हो रहा है तो टाइम पास कितना हुआ, स्लीप आवर्स कितना हुआ, अदर एक्टिविटीज कितना हो गया, एंड टोटल कितना मिला के होना चाहिए बताओ? 24 आवर्स. देन यू डू रेटिंग करो खुद के लिए 1 2 3 4 5 whether it was good or bad, and take your parents signature and we will also sign, don't worry. कैसा है पेरेंट्स, आपको कैसा लग रहा है ये? प्रॉब्लम है सब कुछ अच्छा है, फॉलो होना चाहिए. And I had given properly 1 week का planner, then 7 days. Again 1 week planner, 7 days. ऐसा 14 weeks मैंने दिया है. Okay? And every month how many weeks, tell me? So this planner is only for 3 months. August, September and October. October end में मेरे को आके ये planner दिखाओ. I will give the new one to you. Okay? चलो आगे चलता हूँ थोड़ा. इफ यू सी द सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट पेज प्लीज, यू कैन फाइंड दिस टाइप ऑफ पेज, राइट? फिजिक्स का पेज मिला सबको, फिजिक्स का रहेगा. देखो इन 1 year दीज आर द टॉपिक्स, राइट, विच यू आर गोइंग टू कवर. ये सैनिक सर ने बनाया था, मैंने कॉपी कर लिया सर, ठीक है? दीज आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग. नाउ यू आर डूइंग विच चैप्टर, टेल मी. उसमें क्या पढ़ना पड़ेगा अभी से? सिनॉप्सिस, NCERT, then classwork, then and then you write with pencil. What's the difficulty level of the paper? You divide the paper into what? The chapter into ABC category always, है? Which category? A मतलब easy है, B मतलब थोड़ा difficult, C मतलब बहुत difficult. फिर अपना टारगेट क्या रहेगा थ्रू आउट द ईयर? C को क्या बनाने का? B, और B को A.
That's why this column you write with what? Tell me, this page you always use with pencil, right? Please use pencil for this. And later on you just keep on filling this, right? तो just one page देखा पता चल गया, नहीं तो क्या होता है पता है, फिजिक्स तो मुझे कुछ आता ही नहीं है. And this year I had given some blank pages also. You can see that, yes or no? मिला सबको? One page is for chemistry, one is for biology or maths. So now this planner is for your whole study. I'm not talking about only physics. This is what physics, chemistry, bio, everything, right? Okay, so you can use this page. So I had given this blank page also, right? For other subjects also. You can write the name of the topic, what they are doing, NCERT, MTG, target, I don't know. You can find out with your respective teacher, right? And use this page. ये देखो मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ. What does this tell me? Anyone? दिख रहा है सबको? ये एक प्लानर है, राइट है? किसी ने प्लान किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंड यू कैन सी दिस, राइट? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, राइट? ये लास्ट ईयर का असमी का प्लानर है, असमी ढोके. यू नो एनीवन असमी? टॉपर्स, राइट? उसका डेली का दिख रहा है, वीकली प्लानर, राइट? कितना नीट एंड क्लीन बनाया है. नेक्स्ट वन और डिटेल में, राइट? एट द एंड ऑफ द ईयर क्या रोज पढ़ रही है, ये चैप्टर का नाम भी लिखा है. Okay, then you can see this one, right? Daily planner 6 to 7, 7 to 9, 9 to 10, 10 to 11. यहां से मैंने कॉपी किया. आपको लगेगा अविनाश सर इतना क्यों फेंक रहे हैं? I got this feedback from students only, right? And they are topper. If you want to become topper, please follow them. Okay, it's clear for everyone? चलो, थैंक यू. एंड नाउ लेट्स सी, इसको जरा ऑन कर दो वहाँ से. आई विल शो यू सम वीडियो. दिस लास्ट ईयर का, इस साल का भी दिखाऊंगा अभी. हम लोग सुरभि के घर पे गए थे. यहाँ पे सुरभि लिखा है, सुरभि के घर पे गए थे, राइट? शी वॉज टॉपर लास्ट ईयर. ओके, बहुत लोगों को पता भी होगा, फ्रेंड्स होंगे आपके, राइट? आई डोंट नो. अब वो बता रही है कि उसने 15 घंटे का स्टडी किया है. I'll show you that page. थोड़ा पॉज कर. यहाँ पे देखो आप, दिख रहा है सबको? ओके, सुरभि के घर में एक वॉल पे फिजिक्स था, एक पे केमिस्ट्री था, एक पे बायो था. ऐसा हीरा के घर में भी था, ये लोग कलर कर चुके थे जब हम लोग पहुंचे. कोई इशू नहीं है. फिजिक्स, हाँ हाँ, आगे आगे फिर से पॉज करना प्लीज. बस एक मिनट है. दिख रहा है आपको ये वाला? शी इज रिटन फर्स्ट रैंक ऑफ इंडिया एंड शी गॉट 720 लिखा था उसने, बिकॉज 2024 के पेपर के साथ 720 उसको आता था अगर पेपर इजी होता, राइट है? सो वट एवर आई एम टेलिंग यू इज वॉट ट्राइड एंड टेस्टेड. यस और नो? प्लीज डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली. एंड दिस शी हैज डन इन 2024 में किया उसने. 24 नहीं, 23 में किया था. और 2 साल उसको देखती थी कि फर्स्ट रैंक मुझे लेके आना है. मुझे कितना खुशी मिला कि मैंने किसी को बताया, किसी को मिला, राइट है? ऐसा एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा था, बिफोर एंड आफ्टर, 2 years बिफोर वो केईएम जाके आई, फोटो लेके आई, और अभी केईएम में जा रही है. ओके, प्लीज कंटिन्यू. हाँ, अभी चलने दो, ठीक है, मैं बता दूंगा. देख रहे हैं आपको? ये तो चौल में रहता था, सिंगल रूम. चौल पता है आपको? चौल सिंगल रूम, राइट? आदर्श सिंह. नाउ ही इज इन नागपुर एम्स. एवरीडे 1 hour पावर कट होता था. बच्चा लोग, यू आर हैविंग 3 hours पावर कट एवरी डे एंड ही हैज मैनेज्ड हिज स्टडीज. यू आर ब्लेस्ड. और चौल में क्या होता है मुझे पता है, मैं भी वहीं पे रहता था. आप समझे कि नहीं? आप पढ़ रहे हो, बगल में कुछ और चल रहा है. प्लीज कंटिन्यू. हेजल फ्रॉम घाटकोपर ब्रांच. चलने दो प्लीज. जॉइंट फैमिली. दादी को ज्यादा टेंशन क्यों, पढ़ नहीं रही है. सुबह शाम दादी पूछ रही कितना पढ़ रही है, तो
अच्छा, हमारे बच्चों को पूछते हैं कितना पढ़ रहे हो, उनको टेंशन आ जाता है, भड़क जाते हैं. यस यस, कंटिन्यू प्लीज. बात किया है, माई एम इज वॉट, प्लीज स्टार्ट फॉलोइंग ईच एंड एवरीथिंग. वॉट यू वॉन्ट टू स्टडी. हाँ, ऑन कर दे भाई. Yagya Jain, this year's topper, right? Mulund. In Mulund, he's second, and our class is first. इसका भी 1 bedroom 1 room किचन का फ्लैट है, वो भी भाड़े का. क्रिश ना, क्रिश. क्रिश पूरे साल भर बात नहीं करता था, बट पढ़ता था. लेकिन और ईरा मैम इज देयर. प्लीज मैम, आप भी आ जाओ 1 मिनट के लिए प्लीज. वी हैव लेस टाइम बट यू टॉक राइट. प्यारा. और ये दिख रहा है आपको अफर्मेशंस. प्लीज मैम. अब इनकी छोटी बेटी भी हमारे साथ है, ठीक है. 1-2 मिनट तक तुम्ही बोला, बाहेर खूप लोक उभे आहेत. I'll not take time. As a parent of a girl who has appeared NEET and re-NEET, from a mother's point of view, I think sir has not left anything. I think it's a watertight program. 2 things I learned from my daughters. One is for parents, please leave them alone. It's a difficult thing, but let's leave them alone. Trust in the process, because the more we try and give them gyan, the more they start hating us. Some seniors parent had told me this. They are vulnerable now. Right now we can just take care of what sir said and leave the the planner and to them. They are always available. They have always been very, very available at any hour. And one thing for the students, because I have both the daughters, they are like 2 years apart, ki for children, what sir said, whatever you do, how much ever you study, if you fall sick on the day of exam, everything goes to waste. Pura 2 saal ka mehnat. And being a gynecologist, 2 things which I have seen every past 5 years, and these are my self-views, absolute disclaimer, this is my opinion. Before my daughters entered NEET, we are really, our ability of coping is going down the drains. Parents are also becoming more vulnerable, and their insecurity they are putting on children. The students are becoming more depressed, vulnerable, anxious day by day. So one thing, as a doctor, I want to tell you, this exam, if you pass NEET, it's a huge achievement. But being a doctor, when you will have to stand 10 hours, 12 hours in the ward, only your resilience, your hard work, and your commitment will shine. So don't target mere ko idhar. Yes, you have to aim high, but stay fit, not physically, mentally. One thing I want to completely attribute to the PPT team, because as a parent, and these are, again, I give a disclaimer, these are my views. Before my daughters told me that we were going to take NEET, I never told them which college they have to go, where they have to go. Both me and my husband, we've never told them what they have to do. For me, the biggest achievement as a parent was when my daughter walked in that examination hall, as good as she was giving her daily ka exam. No stress, nothing. She just walked past that examination hall. The moment she came back, she told me, कोई problem नहीं था, I'll do better. This was first NEET, because that time 686 was her score. Okay, but all of you know what happened. So when I asked her, I was shocked, because I am a very emotional overthinker parent. So for me, that was my achievement as a parent. If this is what she has made of herself, with the help of these teachers, I think she can survive anything, literally. And once she came, the most important is what sir said, and I wholeheartedly again and again attribute to this team was, she told me,
I knew exactly 7 days before exam what I have to do. I knew exactly what 2 days before exam I have to do, and I knew exactly what 1 hour before exam I had to do. So टेन्शन नव्हतं. आम्हाला एवढी प्रॅक्टिस दिलेली. So as a parent, I don't, today she has got 590 in her second NEET exam. So that was a tough call. None of us were prepared. But all these 2 years of journey as a parent, and both my daughters are there, they are poles apart in their nature. So what I told you, back off. Because she is a person who will thrive in crowd. She will sit right in the hall where the TV is going on, Aji is doing something, where something is happening, and she thrives in that. So I cannot compare two children. The other child may be a complete, she will need silence. So let's respect their spaces. When they come for help, only that time we have to open our mouth. And we have to be very strong to the parents to deal with their emotional baggage, because they will dump it on us only. So that time let's not judge them. की अरे असं कसं बोलली, असं कशी भांडली, असं का वागते. They are not against us. They are not giving. They are just trying to dump that anxiety on us, and we should be very happy that they are doing it with us and not searching for some safe space outside. So thank you once again, sir. Thank you. Thank you. And I'll tell you, 2020 जो 6 बैच था, इट वॉज वेरी गुड बैच. एरा और इन्होंने बहुत, एक स्टूडेंट होता है ना, उस टीचर को मजबूर करता है पढ़ाने के लिए, याद रखना. येस और नो. इसमें इरा एक थी, सर हे मला सांगा, येत नाही, एकदा दोनदा परत सांगा, काय हरकत नाही आहे. मैं नहीं तो सैनिक सर, सैनिक नहीं तो हेमल सर, आदर सर, किसी को भी पकड़ के उसको पढ़ना है. मॉर्निंग 7 to इवनिंग समटाइम्स 5 o'clock 6 o'clock एक ही बिल्डिंग में रहती थी. अब मैम खाना लेके आके देके जाती थी, वहाँ पे बैठ के पढ़ाई करती थी. वो एक अंदर से आना चाहिए. स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड. Just getting admission in PPT will not become doctor. Understand this, right? You follow this properly. I tried to explain each and everything, right? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. But when you follow this, then it's possible. Otherwise not. तुम डॉक्टर बन जाओगे, तुमने एक पेशेंट को मेडिसिन दिया, वो खाएगा नहीं तो कैसे ठीक होगा. So I am doing my job, but if you will not follow this, nothing will happen. So are you going to follow this properly or not? Tell me. Maybe it will take some time, लेकिन धीरे धीरे उसको आप पूरा इम्प्लीमेंट करो, राइट. एनी हेल्प, वी आर देयर, फुल टीम है यहाँ पे. दीपक सर भी ग्रेट है, सैनिक सर, हेमल सर, आदर्श सर. पहले तो आप लोग दीपक सर को ही मिलोगे मेरे ख्याल से, राइट, एडमिशन प्रोसेस में. हम लोग तो बाद में पिक्चर में आते हैं, ठीक है. कोई किसी को लगता है कि दीपक सर ही पढ़ाने वाले हैं, कितना अच्छा रहेगा. और वहाँ पे मैं बच गया. अगर उनको फिजिक्स भी आता होता तो मेरा तो पत्ता कट जाता था शायद. So wish you all the best. Thank you for your time. And I know I took more time, right? But thanks, ma'am, for your input also, right? So thanks to all parents. And we'll keep on meeting 1-to-1 also. Don't worry. ये सिर्फ एक in general मैंने बताया क्या करना है, right? But again, after 3 months, we'll meet again, right? But not in this way. After 6 months, we'll meet again in this way, right?